bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67, and the Gupti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in a state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expeditious its approval to ensure the timely restoration of the Gupti Fort, sir. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, under the provisions of National Culture Fund, the financial arrangements are being done by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, will certainly consider it. Thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gupti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in processing these proposals and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। माननीय बी रमेश जी, Fund has proposed for water threatening and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of caves and the ruins of structural chatia with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister, has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से
मैं खंडन करना चाहता हूं। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूं। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, मल्लू रवि। क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियां और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% जीएसटी लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी और खाने पीने से जीएसटी हटा दे तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जीएसटी की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल लेती है जो संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती डी.के. अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सदन के पटल पे रखा है। Thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. As the House is aware, India's youth population reached
about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goal of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है, और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किए और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत लर्निंग प्रोग्राम, सीवी बिल्डर और पब्लिक प्रोफाइल भी हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाके वॉलंटरी काम कर सकते हैं। जैसे कि आज वो पुलिस, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेक्टर में वॉलंटरी का काम कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके सोशल वर्क के बारे में जान सके और इस नेशन बिल्ड के लिए उनका भी योगदान दे। उसी तरह आने वाले फ्यूचर में हम रोड सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम बच्चों से वॉलंटरी काम करा रहे हैं। और सबसे खास बात जो अभी इस 10, 11, 12 जनवरी को जो यूथ फेस्टिवल हुआ उसमें खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे दिन भर बच्चों के साथ थे, और हमने यंग अलर्ट्स का भी एक प्रोग्राम चलाया कि जिसके माध्यम से लगभग पूरे देश से 30 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। धन्यवाद। Honorable member supplementary. Yes. Honorable Speaker, sir. Now my second supplementary question to the Honorable Minister. What are the steps being proposed, taken and implemented under various schemes to streamline and transform the strength of India, Yuva Shakti, to make India a developed nation to become the #1 global leader in the world? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो माय भारत पोर्टल है उसके माध्यम से हम हर मंत्रालय की जो भी योजनाएं उसको और पोर्टल के ऊपर ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से युवाओं को भी पता चले कि हर मिनिस्ट्री में अलग अलग योजनाएं क्या शुरू है। और उसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में 1 लाख बच्चों को पॉलिटिक्स में लाना है जिनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन फैमिली का ना है, उसके लिए कई लीडरशिप प्रोग्राम भी हम आने वाले दिनों में अभी चलाने वाले हैं। श्री इटेला राजेंद्र। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सोच लिया था, आज युवा शक्ति भारत के अंदर जो बहुत बड़ा शक्ति है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, जो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो काम करने वालों को क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में रखने के लिए कोई सोच है नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। सेकंड थिंग अध्यक्ष महोदय, ये अब्रॉड में जो काम करने के लिए, उद्योग के लिए जो जाता है,
उन लोगों को पासपोर्ट निकाल के लेके, पासपोर्ट से लेके वीजा तक उनको एक टिकट का पैसा भी देके वहाँ पे कंपनी में गवर्नमेंट खुद उन लोगों को कुछ दिशा दिखाए तो बहुत अच्छा है बोल के कुछ गवर्नमेंट के अंदाजे में ये सोच है। मैं पूछना चाहता हूँ थर्ड थिंग अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हर एक सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ये पोल्ट्री एंड ये डेयरी सेक्टर में जो स्कीम लाया था, वो स्कीम अलग अलग राज्यों में वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। वो हमारा तेलंगाना के अंदर जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके बारे में जो राज्य प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छा हो रहा है। जिस स्टेट के अंदर जो प्रोएक्टिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पे अमल करने के लिए केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है वो पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज 2047 तक जो विकसित भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट का जो सोच है, प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है, वो अमल करने के लिए बैंकों ने उन लोगों को लोन देने के लिए जो दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे वो अच्छा तरह लोन दिलाने के लिए, अच्छा तरह लोन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा सरकार कुछ निर्णय लेके आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश का आर्थिक स्थिति जो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तीसरे स्थान पर दुनिया में लाने के लिए जो स्वप्न है वो अमल करने के लिए हमारा युवा शक्ति का जो मंत्रित्व शाखा है वो जरूर अच्छा काम करने के लिए हमारा सूचना मैं देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। माननीय सदस्य युवा मंत्रालय के क्वेश्चन में स्कूलिंग की बात करें, लेकिन जो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हम जानते हैं, समझते हैं कि युवा देश की शक्ति है। युवा के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उसमें युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका सोशल एक्टिविटी के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से उसको सिंगल विंडो सिस्टम से एक्सपोजर मिले, इसके लिए माय युवा भारत पोर्टल तैयार करा गया है। और माय युवा भारत पोर्टल को हमने इंटीग्रेट करा है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में आज 37 लाख कंपनियां जुड़ी हुई है। हर दिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ जॉब को सॉर्ट करते हैं। माय भारत के वॉलंटियर वहाँ भी एक्सेस ले लेते हैं। देश के युवाओं को विदेश में अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी माय भारत प्लेटफॉर्म सीधा जोड़ता है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल टू ई माइग्रेंट पोर्टल। ई माइग्रेंट पोर्टल से 500 से अधिक ऐसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हो जो विदेश में जॉब कोई भी जगह पे एक्सप्लोर हुई हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हुई हो, चाहे वो कंपनी के द्वारा फ्रॉड करी हुई हो, उसको भी वहाँ रिप्लेसमेंट करने के लिए भी सुविधा सुनिश्चित करी गई है। उसको कोई सोशल एक्टिविटी के साथ जोड़ना है तो उसको भी वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि देश के युवा का एक्सपोजर वैश्विक स्तर पर बने और देश को विकसित बनाने के लिए भी मेरे देश के युवा उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। उसके लिए माय भारत पोर्टल उसको एक्सेस देता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री डी पुरंदेश्वरी। माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मेंबर। Sir, India today is witnessing an increase in digital fraud cases, sir, which is an area of deep concern for us, wherein cyber criminals are actually resorting to advanced, sophisticated techniques to outmaneuver law enforcement and security systems. Sir, a particularly alarming trend in this direction is the digital arrest scam,
wherein fraudsters are impersonating as law enforcement officers and coercing public to part with large sums of money. Sir, additionally, the use of mule bank accounts, sir, has also escalated, wherein illicit money is actually seamlessly brought into the country. And techniques such as phishing, malware and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का ही एक रूप है जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति है। सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर इस घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। मैं इस बिंदु पर सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी रोकथाम हेतु गठित I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद कराए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे। साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म के संदिग्ध अकाउंटों को भी बंद किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकार के तमाम विभागों की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कॉलर ट्यूनर के माध्यम से आम जनमानस को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और हम सबको पता है कि इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने मन की बात में कहा था कि पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। हम सबको जागरूक लोगों को करने की आवश्यकता है। ऑनरेबल मेंबर, KYC verification is mandatory, sir, at the time of onboarding. More than 70% of the bank frauds have happened after the KYC compliance, proving that one-time verification is simply not sufficient enough. Re-KYC and continuous customer monitoring, sir, have been suggested to be a key measure to track suspicious activities and prevent frauds. So many experts have also recommended mandatory re-KYC once every 2 years, and the use of artificial intelligence or AI-driven fraud detection mechanisms to minimize digital lending frauds. Sir, I would like to know from the Honourable Minister through you whether the government is in consultation with RBI in considering making re-KYC mandatory every 2 years and enforcing a continuous customer monitoring to prevent frauds beyond the initial stage of KYC, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि KYC के संबंध में RBI के मास्टर डायरेक्शन है, जो कि रिस्क के आधार पर ग्राहकों के KYC अपडेट करने के निर्देश करती है। हाई रिस्क ग्राहकों के लिए री-KYC 2 वर्ष में, मिडिल रिस्क ग्राहकों की री-KYC 8 वर्ष में और लो रिस्क ग्राहकों की री-KYC 10 वर्षों में कराए जाने की आवश्यक किया गया है, जबकि रिपोर्ट करती है उसके आधार पर यह तय किया है। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा भी प्रश्न डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड पर है। आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दिसंबर 2024 में बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच बैंक फ्रॉड के 18,461 मामले सामने आए हैं, जिसमें 21,366 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 गुना अधिक है। इस रिपोर्ट में एक नए प्रकार के बैंक फ्रॉड, डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन शामिल है। इसमें खास तौर पर अवैध चीनी लोन ऐप, इलीगल चाइनीज लोन ऐप का जिक्र किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत के गरीब और मजबूर लोगों को तुरंत लोन का लालच देकर फंसा रही है। ये ऐप्स लोगों के कॉन्टैक्ट
पिक्चर्स और पर्सनल डेटा एक्सेस करके उनके साथ एब्यूज, थ्रेट्स और ब्लैकमेल कर रही है। चाइनीज क्रिमिनल सिंडिकेट्स और गैंग्स इन ऐप्स को संचालित कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी वित्तीय हानि पहुंच रही है। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सरकार इस अवैध चीनी लोन ऐप्स पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने चिंता व्यक्त किया है कि फ्रॉड का केस काफी बढ़ गई है, महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार फ्रॉड रिपोर्टिंग से पहले सुनवाई का मौका देना आवश्यक है और इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष 24-25 की शुरुआत में बहुत सारे फ्रॉड जो पहले के वर्षों से हुए थे, बैंकों के अनरिपोर्ट किए फिर सुनने का मौका देने के बाद रिपोर्ट किया। इस वजह से 2024-25 में प्रथम 9 महीने में रिपोर्ट फ्रॉड की संख्या बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात है कि 2024-25 में रिपोर्ट केस में बहुत सारे फ्रॉड वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों में हुए थे। मैं सदन को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर के बीच हुए फ्रॉड की धनराशि मात्र 837 करोड़ रुपए है। तो माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूं कि 2024-25 में जो फ्रॉड की संख्या अत्यधिक दिख रही है वो माननीय उच्च न्यायालय के रिपोर्टिंग संबंधी प्रक्रिया के परिवर्तन से हुआ। और मैं माननीय सदस्य को दूसरा प्रश्न जो फ्रॉड लोन ऐप्स के विषय में है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार देश में अवैध लोन ऐप्स पर निगरानी रखने के लिए आरबीआई एवं अन्य निर्णायकों एवं हितधारकों को लगातार संपर्क में रहती है। आरबीआई ने डिजिटल ऋण के रेगुलेटर के लिए 2022 में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ में साइबर स्पेस में गलत सूचना, डिफेक्ट, अवैध ऋण आदि समस्याओं के निदान के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों समन्वयों के साथ काम करते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C समय समय पर फेक लोन ऐप्स एवं फेक लोन वेबसाइट का परिचालन बंद करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 मनीष तिवारी, प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं बढ़ना चाहते? ओके, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 6 श्री जगन्नाथ सरकार। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पर प्रस्तुत। सर, मेरा क्वेश्चन है कि 15 साल से वो केबी विद्यालय तारकेश्वर में जो पौरसभा ओटीटी शाला में परिचालित हो रहा है, क्यों निर्धारित समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन प्रदान क्यों नहीं किया? जमीन प्रदान नहीं किया तो पीछे क्या कारण है? उनके पढ़ाशुना के लिए माननीय सदस्य संक्षिप्त में शाखा विस्तार परिकल्पना क्यों किया है? वो अलग जो विभाग है वो शाखा पढ़ाई के लिए जो कॉमर्स और कला विभाग का क्या परिकल्पना है? ये मेरा क्वेश्चन है। सभापति जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस है और क्वालिटी एजुकेशन है, उसका फोरमोस्ट एक संस्था है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं शेयर करता हूं सांसद जी के कंसर्न को। 2011 में केंद्र सरकार ने तारकेश्वर में डिस्ट्रिक्ट हुगली में केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किया और सैंक्शन की अप्रूवल की कोई शर्तें होती हैं। जो जमीन स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी इस केस में राज्य की सरकार थी, उन्हें उपलब्ध करानी थी और रेंट फ्री टेम्परेरी अकोमोडेशन देना था जिस प्रेमिस में स्कूल चल सकता था। 2011 से लेकर 2017 तक, क्योंकि राज्य सरकार ने, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई, उस कारण से देरी।
ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। तो इस परिसर में कैसे वो केबी का शिक्षा बढ़ाने के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या अलग कोई परिकल्पना किया है? ये मेरा क्वेश्चन है। सर, केंद्रीय विद्यालय पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो, इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से विचार करती है। जब प्रस्ताव मिलता है, 5 साल में 60 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण हुआ है और लगातार उसमें विस्तार हो रहा है। मुझे खुशी है बताने में कि तारकेश्वर, जहां केंद्रीय विद्यालय का जिक्र सांसद जी ने किया, अभी दूसरी किस्त भी जारी की गई है जुलाई 2024 को। वहां निर्माण के संबंध में सांसद जी लगातार फीडबैक दे सकते हैं, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा और हम सबकी कोशिश रहेगी कि सांसद जी के फीडबैक के अनुरूप काम हो। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर माननीय सदस्य अतुल कुमार जी, आप पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 श्री विजय कुमार उप विजय बसंत। प्रश्नकाल नहीं पूछना चाहते आप? श्री बी मणिकम टैगोर, प्रश्नकाल पूछना चाहते हो? जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ऑनरेबल मेंबर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है। ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपए था और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपए हो गया। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योग घरों में लाखों करोड़ों के कर्ज में दी। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है, उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप तो। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है। क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी? पहला सवाल है मेरा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ऑलरेडी वो सभा के बटन पे रखा हुआ है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ। वहीं पर देखें अगर जहां कर्ज माफी बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं तो उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि और संरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अगर देखें अध्यक्ष जी तो एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है बल्कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ
पीएम धर्म धान्य योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा मरने वालों की कुंभ में मरने वालों की मेरा सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची को कुंभ में मरने वालों सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करवाने के लिए राजस्थान सहित देश के किसानों पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण से बताने का कष्ट करें, क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मंशा को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ये बताओ कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? ये बताओ ना, राजस्थान में कौन सी सरकार ने कर्जा माफी की बात की थी, बताया करो ना आप। चलो, फिर से नंबर 9 श्री जयंत बसुमतारी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 9। माननीय सदस्य उत्तर सभा पटल में प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी से मैं इस बात को जानना चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में 284 केजीबीवी स्कूल है, इनमें से 19 केजीबीवी रेंट फेमाइश में है, तो इसको अपने परमानेंट फेमाइश में ले जाने के लिए कोई धनराशि दिया गया है और कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा, इसको बताने की कृपा करें। सभापति जी, केजीबीवी का अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समग्र शिक्षा के तहत होता है और राज्य सरकार उसमें प्रस्तावित करती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड अकॉर्डिंगली कार्रवाई उसको तय करता है, सैंक्शन देता है, उस अनुरूप कार्य होता है। केजीबीवी को लगातार अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार अहम फैसले ले रही है। केजीबीवी का अपग्रेडेशन 2018-19 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 तक 2616 केजीबीवी अपग्रेड हुए हैं और 313 अपग्रेड हुए हैं 10वीं कक्षा तक और 2303 अपग्रेड हुए हैं 12वीं कक्षा तक। इसके अतिरिक्त आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी केजीबीवी में देने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, सारा नॉर्थ ईस्ट में 55 वैकेंट पोस्ट है। इनमें से आसाम में 52, 52 और सिक्किम में 3। सारे देश में 5138 केजीबीवी है। इनमें से 28,333 सैंक्शन पोस्ट है। आउट ऑफ दिस 3,860 वैकेंट पोस्ट है। ये कब तक नियुक्त किया जाएगा, इसको बताने की कृपा करें। सर, आंकड़े अभी सांसद जी ने पेश किए, ये उत्तर में प्रस्तुत भी किए गए। जो रिक्रूटमेंट है वो एज पर पॉलिसी होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। प्रश्न संख्या 10।
अध्यक्ष महोदय उत्तर सभा के पटल पर रखें। अभी पूछो, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हाशिए पर पड़े समुदायों, दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए मंत्रालय ने वर्चुअल भागीदारी अनुमति देने और व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जो इस साल का यूथ फेस्टिवल रहा है, उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर तो शहरी क्षेत्रों तक सभी बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। और खास करके मैं बताना चाहूंगी कि इसमें 12 लैंग्वेज में ये कंपटीशन यहाँ पे हुआ था, जिसमें हमने विकसित भारत क्विज कंपटीशन लिया। उसके बाद विकसित भारत ऐसे चैलेंज कंपटीशन हमने लिया, जिसमें 10 विषय यहाँ पे रखे हुए थे, जो कि विकसित भारत को लेके ये बहुत अहम थे। उसमें मैं बताना चाहूंगी कि विकसित वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, स्टार्टअप इंडिया, एग्रीकल्चर, विकास भी, विरासत भी, यही 10 विषयों पे हमने ये कंपटीशन लिया था। और देश के कोने कोने में से यहाँ पे बच्चे आए थे, लगभग 3,000 के लगभग भारत मंडपम में उनकी उपस्थिति में ये प्रोग्राम हुआ है। आलोक जी पूछना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक राज्य और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीधी और सिंगरौली जिले में उप महोत्सव को बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि हर राज्य में राज्य सरकार की तरफ से भी ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और जैसे पहले भी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि माय भारत एक ऐसा पोर्टल है कि जिसके माध्यम से जितने भी योजनाएं भारत सरकार की और खास करके यूथ को लेकर जो भी योजनाएं माय भारत के पोर्टल के माध्यम से हर राज्य का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। धन्यवाद। नवचरण माझी, क्वेश्चन नंबर 11 श्री एंटोनी। माननीय वित्त मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 श्री धैर्यशील संभाजी राव माने। धैर्यशील माने। माननीय मंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, बात मत करिए। माननीय पर्यटन मंत्री जी, पर सदन के पटल पे रखा गया था। श्री सुधीर गुप्ता। सम्मानीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और माननीय पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 40 परियोजनाओं को चुना है और उसमें लगभग 3,295 करोड़ और 2,175 करोड़ रुपए का राशि स्वीकृत किया है। उसमें से मध्य प्रदेश की 2 परियोजनाएं भी है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में देश और दुनिया में पर्यटन के नाम को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। हिमलाज रिसोर्ट और हिमलाज का स्थान जहां उमा महेश्वर नंदी की प्रतिमा फ्रांस और वाशिंगटन गई थी। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र में जो रॉक कटिंग का मूवमेंट है, धमनार की गुफाएं, वो विश्व प्रसिद्ध है। स्वदेश दर्शन सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चीता अति शीघ्र और मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा पानी संग्रह भी वहां है। कार्तिकेय, नृत्य गणेश, कुबेर, नंदी, उमा महेश्वर, नवग्रह
ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं, 4 लाख वर्ष पुराना रॉक कटिंग का भी मूवमेंट है। क्या मंत्री जी भारत सरकार के माध्यम से सीधे मध्य प्रदेश सरकार को जोड़ते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र को नेशनल मैप पर लाने के लिए प्रयास करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से स्पेशल ग्रांट्स में 40 प्रोजेक्ट जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के भी हैं को इंक्लूड किया गया है। माननीय वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 3,295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसा देने का काम किया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि स्वदेश दर्शन पे जो भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं और उसके बाद क्या उसको विश्व के पटल पर लाने के लिए कोई योजना है। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि टूरिज्म के किसी एक डेस्टिनेशन पर्टिकुलर को विश्व पटल पर लाने के लिए कोई इस तरह की स्ट्रेटेजिक योजना का काम नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इनक्रेडिबल इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के सारे प्लेटफॉर्म से नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां भी सहभागिता करती है वहां अपने सारे टूरिज्म पोटेंशियल को डिपिक्ट करने के लिए काम करती है। ऐसे सारे आयोजनों पर मैं जो है प्रमुखता के साथ में मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य के लोकसभा क्षेत्र के ऐसे स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों को भी प्राथमिकता के साथ में सारे टूरिज्म फेयर स्मार्ट सब में डिपिक्ट किया जाए। इस पर हम निरंतर काम करते हैं और आगे भी प्रमुखता के साथ में इस पर काम होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 श्री उमेश भाई बाबूभाई पटेल। उमेश भाई बाबूभाई पटेल। सर सवाल नंबर 13। माननीय मंत्री जी क्या है? माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1-2 वर्षों से विचार क्यों नहीं किया गया? वर्तमान में दमन और दीव में छात्रों को जो उच्च शिक्षा की डिग्रियां दी जाती है वो अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय की एप्लीकेशन में रखती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छात्रों को अपने प्रदेश की डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कितने समय तक का इंतजार करना होगा? माननीय मंत्री जी क्या बता सकते हैं कि क्यों हमारे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है? मैं यहाँ पर औपचारिक रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि दमन और दीव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास जिलों से छात्रों को भी लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ में मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज के टॉप 100 यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हमारे प्रदेश में स्थापित किए जाए ताकि यहाँ के बच्चों को फॉरेन जाने के बजाय यहीं रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सके। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य अपने द्वीप समूहों में यूनियन टेरिटोरी में दादरा नगर हवेली और दामन दीव में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरा इलाका में सिर्फ 12,414 विद्यार्थी है और पूरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और इसमें से 3 केंद्रीय अनुदान से चलने वाली संस्था है। विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में सरकार इस दिशा में सोच सकती है। सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से कह रहा हूँ, हमारे प्रदेश में प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी की स्थापना के कोई प्रबंधन नहीं है। बात सही है, पर मंत्री जी अब तक हमारे प्रदेश में एसएससी और एचएससी का बोर्ड तक गठन नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिना सरकार की प्रतिबद्धता से, बिना यूनिवर्सिटी के गठन से हमारे बच्चों को उचित एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा? क्या हमारे प्रदेश के बच्चों को भारत के अन्य राज्यों के बच्चों की तरह आधुनिक एवं अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या बिना बेसिक शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रदेश के बच्चे अन्य राज्यों के बच्चे के साथ
हेल्थी कंपटीशन कर सकेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रदेश में हमारी जनसंख्या को ध्यान में लेते हुए हमारे प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। धन्यवाद महोदय। स्पीकर साहब, मैं पिछले दिनों में दादर नगर हवेली और दामन दीव इलाका में दौरे में गया था। मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा। मैं वहाँ की स्कूली शिक्षा को देखा। इन दिनों में जो नए पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हुए हैं, इनको देखा। वहाँ के प्रशासक आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ अच्छे मान की शिक्षा अनुष्ठान में भी बनना शुरू हो गया है। दादर नगर हवेली और दामन दीव की विद्यार्थियों को सर्वभारत के स्तर पर हम शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। वहाँ की यूनियन टेरिटोरी की नेतृत्व और भारत सरकार दोनों मिलकर, मैं तो उल्टा कहूँगा, आने के बाद देश के अनेक इलाके की शिक्षा प्रशासकों को दामन दीव वहाँ के शिक्षा देखने के लिए भेजा है। वह अच्छा शिक्षा प्रणाली चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीएमएसवाई योजना के तहत विशेष रूप से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों श्रमिकों को पेंशन दी गई है और पेंशन के साथ साथ कितने राशि का आवंटन किया गया है, मासिक रूप से कितनी राशि दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ सामान्यतः अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सामान्य वर्ग और मजदूरी करने वाले लोगों को मिलता है और ऐसे लाभार्थियों को लाभ मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले और उनकी पिछली लाइफ में उसको असुविधा ना हो, इसलिए 3,000 तक का पेंशन देने का प्रावधान करा गया है। मध्य प्रदेश की ओर से आज तक हमें 1,82,944 लोगों ने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा है। उसकी राशि कट रही है। जब 60 साल की आयुष्य पूरी होगी तब उसको 3,000 मिनिमम पेंशन मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 3 वर्षों के अंदर कितने श्रमिकों को इसकी पेंशन की राशि दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक पूछा है, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। राज्य का फिगर मैंने कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो कुल लाभार्थी है उसकी सूची अभी आपके सामने रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन सुनिश्चित हो और सुनिश्चित करने के लिए पिछली लाइफ में सुविधा है, उसके लिए उसको हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है। आज देश में 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उसको 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण किया जा रहा है। वैसे ही देश में 51 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिसको हमने प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत उसको पेंशन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री संदीपन राव बुमरे। क्वेश्चन नंबर 15 मोहम्मद रकीबुल हुसैन। माननीय मंत्री महोदय, सदन के पटल पर रखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर। माननीय मंत्री जी उत्तर सभा के पटल पर रखा है। खेल युवा मंत्री जी, आप खबर भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 17 श्री सनातन पांडे।
नहीं है सर। वित्त मंत्री जी श्री चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इंडस्ट्री योजना जो 2024-25 में शुरू की गई, इस देश के युवाओं को कौशल करके उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसके माध्यम से राजस्थान में क्या विशेष रूप से क्या कार्य योजना बनी है, और जो 12 माह का इसमें समय दिया गया है जिसमें वास्तविक रूप से क्लासरूम में नहीं बल्कि वो उस काम को सीखे और अनुभव के आधार पर रोजगार खड़ा करे, तो राजस्थान की स्पेसिफिक मैं पूछना चाहता हूं उसके लिए विशेष क्या कार्य योजना बनी है? धन्यवाद। कॉर्पोरेट मंत्री जी, कॉर्पोरेट मंत्री जी। Answer is right on the table, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 श्री भर्तृहरि महताब जी। क्वेश्चन नंबर 18 सर। Sir, it is indeed gratifying to know that after the reduction, the corporate tax has increased and investment from foreign countries also has increased. But has it resulted in generating more employment? The number that has been given us is very negligible. What steps are being taken to generate more employment with the reduction of the corporate tax? Sir, since the corporate rate has been brought down, for incentivizing employment, a lot of every scheme that we bring in focuses on employment generation. Employment generation in the last July 24 budget has also been given 5 different schemes through which employment is being focused on. My second supplementary would be the tax foregone, how much it has been invested or reinvested in those companies. So I don't think we have the data on that, sir. प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों, विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफार्मों पर ये यहां भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाए। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है, लेकिन माननीय सदस्य उन सारे विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में उठा सकते हैं। उस समय पर्याप्त अवसर उनके पास रहेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। आप
आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, 2 दिन महत्वपूर्ण और लंबे देर तक हमें चर्चा करनी है। 12 घंटे तय हुए हैं बीएससी के अंदर। सब मान्य नए सदस्य भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राष्ट्रपति के भाषण में, आप बोलिए उसे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2, श्री अश्वनी वैष्णव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इसकी हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की 1 प्रति सभा पटल पर उपस्थापन करता हूं। आइटम नंबर 3, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची क्रमांक 3 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री जैन चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 of today's list of business. आइटम नंबर 5, श्री प्राद यशो नाइक जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6, श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 6 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Kirti Vardhan Singh, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against his name at serial number 7, pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in today's list of the business. Thank you. Number 8, Shri Suresh Gopi. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 8 of today's list of business. Thank you. Item number 9, श्री सुकांत मजुमदार। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, महासचिव। Sir, I lay on the table the appropriation number 3 bill 2024 passed by the Houses of Parliament during the third session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 27 November 2024. I also lay on the table a copy of the Bharatiya Vayuyan Vidheyak 2024 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha. Item number 11, Sri Ravi Shankar Prasad. With your kind permission, I wish to present the fourth report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, on demands for grants of the Ministry of External Affairs for the year 24-25, as listed against my name at serial number 11. 11. Item number 12, Sri Visheshar Hegde. Sir, I raise to lay on the table a copy of each English and Hindi of the 370th, 371st, 372, 373 and 374 reports of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at 12 in today's list of business. Item number 13, Sri Pad Yaso Naik. With your kind permission, due to my report that the Union Cabinet approved the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana on 29 February 2024, aimed at boosting the solar rooftop capacity and enabling the residential household to generate their own electricity. With a budget of rupees 75,021 crore, the scheme will be implemented until first financial year 2026-27. Due to the exigent circumstances, an advance of rupees 100 crore was sanctioned from the contingency fund of the India-wide debtor of Ministry of Finance, DEN OM number
4(8)B(SD) 2024 dated 4th October 2024. An amount of rupees 50.29 crores has been drawn till 20/12/2024, including the rupees 15,81,88,347 drawn during the Parliament session on 4/12/2024. The contingency fund advance has been recouped through the first supplementary demand for grant. Thank you, sir. आइटम नंबर 14 श्री संजय जायसवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2025 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्यों को निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि संजय जायसवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री केसी वेणुगोपाल जी। I raise to move that this House to recommend to Rajya Sabha that, Sir, I raise to move that the members of this House to proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 15 members from amongst themselves to serve as a member of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2025 and ending on the 30th April 2026. प्रश्न ये कि श्री वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 श्री वेणुगोपाल जी। To move this House to recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May 2025 and ending on the 30th April 2026 and do communicate this House the names of members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये है कि श्री वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 70 श्री वैजयंत पांडा, चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 312 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2025 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से 15 सदस्यों का निर्वाचन करें। धन्यवाद। प्रश्न है श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामैम व्याचेस्लाव वोलोदिन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा सदन से की ओर से माननीय शिष्टमंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री वोलोदिन और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत रूस संबंधों की गहराई का प्रतीक है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और रूस के बहुत गहरे और दीर्घकालीन संबंध रहे हैं। इस यात्रा से
हमारी दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी व संसदीय संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम रूस की संसद तथा वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आइटम नंबर 18 श्री चंद्र प्रकाश जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2025 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 7 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करें और राज्यसभा द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें। माननीय चंद्र प्रकाश जोशी जी। अच्छा, प्रश्न ये है कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 19 माननीय डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्य लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 खा के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित तरीके से अपने में से 20 सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करें, जिनकी अवधि 1 मई 2025 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 तक होगी। प्रश्न ये है कि माननीय डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 20 माननीय श्री अनंत नायक जी। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2025 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमति हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 21 माननीय श्री कृष्णपाल जी। श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदया, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने की कृपा करें। आइटम नंबर 23 राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। बाद में लेंगे। आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस पवित्र और सम्मानित सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में
अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, मेरे लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है जी। जी प्रस्ताव करें। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समवेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण जो उन्होंने 31 जनवरी 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस पवित्र और सम्मानित सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, मेरे लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है कि मुझे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण न केवल भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के वाली सरकार की नीतियों का दर्पण है, बल्कि यह देश के उज्जवल भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला है। आदरणीय सभापति महोदय, ये भारत का सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध राजनेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिनके हृदय में इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। उन्हें इस देश की माटी से बेइंतहा लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पलता है। जैसा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज हमारा देश चहुमुखी विकास के रास्ते पर है। बीते 10 वर्षों में भारत ने तरक्की और विकास के लिए प्रतिमान स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी सरकार का तीसरा काल भारत की समृद्धि का नया इतिहास रचेगा। जन कल्याण की नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। यह सचमुच भारत में समृद्धि का अमृत काल है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। उसकी घोषणा भी इस सदन में भारत की माननीय वित्त मंत्री महोदया ने की है। देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है। देश की किसी भी सरकार ने आज तक मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत नहीं दी है। 8वें वेतन आयोग का गठन भी किया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे निर्माता पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करने का है। मुझे इस बात की खुशी है, पूरे देशवासियों को खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान पर महू में जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सभापति महोदया, बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों का पंच तीर्थ के रूप में विकास किया गया है। ये पंच तीर्थ है जन्म स्थान महू, दीक्षा स्थान नागपुर, मुंबई में स्मारक, लंदन में स्मारक,
और दिल्ली में अलीपुर रोड स्मारक, इसके अलावा दिल्ली में जनपद पर भी बाबा साहब की स्मृति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, 1990 से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी। जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से देश में सरकार बनी, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी, उस सरकार से आग्रह किया कि देश की संसद में सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर लगाई जाए, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और इसके साथ साथ बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी की जाए। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर यह सब कुछ संभव हो पाया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि आज पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति गौरव महसूस कर रहा है, उनका अभिनंदन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हृदय में किसानों के प्रति गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा रकम भेजी गई है। देश के किसानों की आय में वृद्धि हुई है। भारत में 332 मिलियन टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमारा देश लगातार दूध, दलहन, मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है और महान किसान नेता देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया है। यह सभी किसानों के लिए गौरव की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में लगभग 4.5 करोड़ गरीब लोगों को मकान बनाने का लक्ष्य रखा। उसमें से 3.25 करोड़ मकान बन चुके हैं। दिल्ली में मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने दिल्ली में लाखों झुग्गी झोपड़ी वासी जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की योजना शुरू करी है। 7,000 झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट दिए गए हैं और आज उस एक फ्लैट की कीमत जो झुग्गी वासी को दिया गया है उसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए दिल्ली में 53,000 फ्लैट्स बनाए गए। बार बार मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आग्रह किया कि ये जो 53,000 फ्लैट्स बनाए गए हैं, केंद्र सरकार की सहायता से बनाए गए हैं, इन फ्लैट्स को दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों को इनको अलॉट किया जाए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी वासियों को उजाड़ा, लेकिन किसी एक झुग्गी वासी को फ्लैट में पुनर्वासित नहीं किया। आज फ्लैटों की हालत जर्जर हो गई है। ये स्थिति आज जो दिल्ली के अंदर पैदा हुई है, एक तरफ मोदी जी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरी तरफ
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपने रहने के लिए 179 करोड़ रुपया खर्च करके शीश महल बनाते हैं, कानून कायदे का उल्लंघन करके शीश महल बनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। पूरे देश में लगभग 7 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने इस योजना के ऊपर खर्च किया है। लेकिन ये दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। हम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। उस 5 लाख और 5 लाख उसमें जो है दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार देगी। 10 लाख रुपया वरिष्ठ नागरिकों के इलाज पर मोदी जी की सरकार खर्च करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इसको लागू नहीं होने दिया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी गरीब का बेटा बीमार होता है और अस्पताल में जाकर जब वो दाखिल उसको किया जाता है और मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना है, उस योजना के चलते जब अस्पताल में उसका ठीक ठाक से इलाज हो जाता है, जब वो अपने घर लौट के आता है, तो उस बेटा के मां बाप भगवान का शुक्राना करते हैं। और उसके बाद मालूम है क्या कहती है मां कि मोदी जी मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए। ये अंदर से आवाज आती है। और ऐसी योजना को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मैं इसके लिए कड़ी निंदा करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली के अंदर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू नहीं होने दिया। लगभग 2 करोड़ 62 लाख लोग अभी तक पूरे देश में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हमारे कारीगर, चाहे लुहार है, खाती है, कुम्हार है, मोची है, राजमिस्त्री है, ऐसे जो जिनके पास अपना हाथ का हुनर है, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, सम्मान के साथ कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक संकट उनके सामने आ जाता है, तो मोदी जी की सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। यदि किसी कारीगर को अपना कारोबार करने के लिए धन की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन करवाइए। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपया 15 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। इस पीएम विश्वकर्मा योजना को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में नहीं, दिल्ली की बात तो मैं बाद में करूंगा, पूरे देश भर में मोदी जी की सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। दिल्ली में हमारे लाखों झुग्गीवासी हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। मोदी जी की सरकार चाहती थी कि दिल्ली के अंदर भी शौचालय बनाए जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी। ये जानकारी मैं इस हाउस के अंदर आदरणीय सभापति महोदय देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार 72 लाख लोगों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। लेकिन पिछले 10 सालों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों को राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया। यदि दिल्ली के गरीब लोगों को राशन कार्ड मिल जाएगा तो इससे मोदी जी की लोकप्रियता गरीब लोगों में बढ़ जाएगी। अरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं, कम से कम यदि गरीबों के लिए कोई योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, आप उसमें अड़चन उत्पन्न कर रहे हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत
10 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचा है। देश भर में 14,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं। मैं दिल्ली के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि 642 जन औषधि केंद्र दिल्ली में बनाए गए हैं। जो दवाई मार्केट में 100 रुपए की मिलती है, जन औषधि केंद्र से 20 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली के मध्यम और गरीब लोगों को मोदी जी की सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र खोलकर पहुंचाया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। मैं दिल्ली के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारे कांग्रेस के लोग भी यहां बैठे हुए हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 2012 में सिंगापुर के साथ मिलकर एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की नींव रखी गई। 40 एकड़ जमीन पर कम से कम 10,000 बच्चों को वहां उनको ट्रेनिंग मिलती। मोदी जी की सरकार ने लैंड यूज चेंज कर दिया, लेकिन 2012 से लेके आज तक जौनापुर में जो सिंगापुर सरकार की सहायता से जो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनना था, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको नहीं बनने दिया। ये दिल्ली देहात के युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा गया है, उनके साथ विश्वासघात किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि भाजपा के पास ना नेता है और ना कोई विजन है। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे पास अभी जो 2025 का जो सर्वे है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो नेता भी हैं, जिनके काम करने की नीति भी उनके पास है और काम करने की नीयत भी है। मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस बात की चर्चा की है कि भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से मैं इस ऑनरेबल हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो दिल्ली को अनेक विकास के तोहफे दिए हैं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर अपने कान खोलकर सुने। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया। आदरणीय सभापति महोदय, सुनो, ये विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, सुन लीजिए जरा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई। 43,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 3700 करोड़ रुपया उसके लिए देना था, एक पाई पैसा नहीं दिया गया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जानकारी में बात लाई गई, तो मोदी जी ने अपनी सरकार को कहा कि काम को रोकना नहीं है। दिल्ली के अंदर हर रोज 60,000 ट्रक्स एंटर करते हैं, दिल्ली को प्रदूषित बनाते हैं। आज वो पेरिफेरल रोड बनकर तैयार हो गया है। 60,000 ट्रक्स की एंट्री दिल्ली में बैन हो गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, अपोजिशन के लोग जरा सुनने का जरा मादा दिखाओ, हम भी आपको सुनते हैं। मोदी जी ने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, बदरपुर में दुनिया का मोदी जी ने
आदरणीय आदरणीय सभापति महोदय, आप सुनने का जरा मादा रखिए। आपको बोलने का अवसर मिलेगा, आपको जो बोलना बोलिए। आदरणीय सभापति महोदय, मोदी जी ने साउथ दिल्ली में बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया है। उस इको पार्क में जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है। उस इको पार्क में सफारी है, चिड़ियाघर है। उस इको पार्क में 1.5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। आपको मालूम है ये इको पार्क कहां बनाया है? एनटीपीसी की राखी का ढेर था। 885 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था। आज उस राखी के ढेर पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है, और जिसमें सफारी भी है, चिड़ियाघर भी है। 1.5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उस इको पार्क में, उस राखी के ढेर पर बोटिंग लेक बनाया है। हमारे बच्चे बोटिंग करेंगे। और आज मैं ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये काम यदि इस धरती पर भगवान आ जाए तो तब संभव है। और ये काम या ये जो चमत्कार जो किया है दिल्ली की धरती पर, ऐसा चमत्कार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं बात कहना चाहता हूं आदरणीय सभापति महोदय, प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है। 1000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने उस 1.5 किलोमीटर लंबी टनल पर खर्च किया। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 20% आम आदमी पार्टी की सरकार को उस टनल को बनाने के लिए देना था। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यहां नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक नया पैसा उस टनल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये मामला लाया गया, उन्होंने कहा कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना है, पैसा जितना लग जाए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक पैसा ना दे, लेकिन टनल के काम को रोकना गई है। ये है आदरणीय सभापति महोदय, मैं साउथ दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूं। आप कभी मथुरा रोड पर गई होंगी। हमारे सभी अपोजिशन के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जाते हैं। मथुरा रोड पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सराय काले खां से कालंदी कुंज होते हुए, मीठापुर, फरीदाबाद, पलवल, सोना होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे तक 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके 6 लेन का हाईवे दिया है। मथुरा रोड पर अब ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं था। हमारे पास केवल एक विज्ञान भवन था। आदरणीय मोदी जी ने यशोभूमि द्वारका में 6500 करोड़ रुपया खर्च करके वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया है। मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बनाया है। और जो द्वारका में जो कन्वेंशन सेंटर बना है, 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो क्या इस हाउस को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास पार्क नहीं था। मोदी जी के मार्गदर्शन में द्वारका में 137 एकड़ जमीन पर वंदना पार्क विकसित किया, जिसके ऊपर 560 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसकी नींव देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रखी थी। वो बनकर तैयार हो गया है। आज दिल्ली के लाखों लोग जब उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं, ओपन जिम लगा दिए हैं, जब बच्चे कसरत करते हैं तो मन से वो मोदी जी को दुआ देते हैं। ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इंडिया गेट की तरफ चलें, नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है। जो मोदी जी ने नेशनल वार मेमोरियल दिया है, देश के शहीदों को, देश के फौजियों को, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो लोग
काम करते हैं, देश के लिए शहीद हो गए, उनकी याद में जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, मैंने वाशिंगटन में अमेरिका का भी नेशनल वार मेमोरियल देखा है। वो नेशनल वार मेमोरियल वाशिंगटन का इसके सामने कहीं टिकता भी नहीं है। तो क्या मोदी जी के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए? हमें इस बात की खुशी है कि इंडिया गेट पर जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज उस स्थान पर मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की, नेता की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को जो सम्मान दिया है, ये पूरा राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। आदरणीय सभापति महोदय, जिस ऐतिहासिक इमारत में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, ये इमारत भी मोदी जी ने बनाकर दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने जो कर्तव्य पद दिया है, आज लाखों लोग हर रोज कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर एकत्रित होते हैं, मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हजारों हमारे खोखा पट्टी के लोगों को, जो बेचारे फल फ्रूट बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, पानी बेचते हैं, उनको रोजगार भी मिला है और कर्तव्य पथ की जो रौनक बढ़ी है, वो देखने में अपने आप में बिल्कुल अलग है। दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक दिल्ली पुलिस के पास अपना कोई पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने जयसिंह रोड पर कनॉट प्लेस में 1000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है। मैं इसके लिए भी उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का जो कुल नेटवर्क था, वो 200 किलोमीटर का था, और वो बढ़कर दुगना हो गया है। मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी के प्रति दिल्ली वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में उनके कर कमलों द्वारा दिल्ली में रिठाला, नरेला, कुंडलिक कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है, जिसका फाउंडेशन स्टोन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं दिल्ली के लोगों से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, यहां हमारे उत्तर प्रदेश के भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं। क्या ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि एमआरटीएस ट्रेन केवल 45 मिनट में अब दिल्ली से मेरठ पहुंच रही है। नमो मेट्रो दिल्ली और एनसीआर को जोड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका गुरुग्राम कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से एरो सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली से सहारनपुर, नीमराना, बहरोड नमो भारत कॉरिडोर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत कॉरिडोर, और सेंट्रल विस्टा से मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त दी हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली के पास, डीटीसी के पास 6000 बसें थी। आज वे घटकर 2500 रह गई हैं, और जो 2500 बसें हैं वे भी आउटडेटेड हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। यदि मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें नहीं दी होती तो आज हमारा हाल क्या होता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि दिल्ली को 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
यदि आज दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है तो उसके दो कारण बताए गए हैं। एक कारण कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया, और दूसरा कारण बताया है कि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, जर्जर हालत में है, और जब सड़कों के ऊपर गाड़ी चलती है जो धूल उड़ती है तो PM2.5 सबसे ज्यादा धूल से जनरेट होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दिल्ली में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाए, यदि दिल्ली की सड़कें, जिनके बारे में यह कहा गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि हम पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, उसकी पार्टी के नेता को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि हम यमुना को भी साफ नहीं कर पाए, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पाए, हमें 5 साल और दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। अब तो मोदी जी की पार्टी की सरकार ही दिल्ली को ठीक करेगी, दिल्ली को विकसित करेगी। मैं इनको ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से हर रोज 40,000 कमर्शियल वाहन दिल्ली रोज आते हैं। इनको रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए, मैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको हम तीसरा रिंग रोड भी कहते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार 12,500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जो बनकर लगभग तैयार हो गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसमें 27 फ्लाईओवर हैं, 18 अंडरपासेज हैं, और मैं ये जानकारी ऑनरेबल हाउस को देना चाहता हूं कि जिनके पास हर साल 80,000 का बजट है, 80,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, दिल्ली के अंदर 80,000 करोड़ का जिस सरकार के पास बजट है, वो दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं बना पाए। इसकी जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से मुंबई तक नेशनल हाईवे, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, अक्षरधाम से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे, शिवमूर्ति से नेशनल मंडेला मार्ग तक बनेगी सुरंग, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, जिसकी घोषणा की है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा ताकि एयरपोर्ट तक जाने का मिले अलग से रास्ता। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को टोरेगा सिटी के निकट गाजियाबाद से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद नोएडा के लिए अलग रास्ता मिलेगा, यह जानकारी भी बैठिए। आदरणीय सभापति महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस दिल्ली में कड़कड़ धुआं, उस क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी ने 1168 करोड़ रुपया दिए हैं। काम लगभग पूरा हो गया है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं दे पाई। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में द्वारका में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसके ऊपर 572 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। ये जानकारी मैं उनको दे रहा हूं जो ये कहते हैं कि इनके पास विजन नहीं है। मैं विजन की जानकारी दे रहा हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी भी लड़ाई उन्हीं से है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आपको करना चाहिए। और आपके नेता के बारे में क्या कहा है उन्होंने, वो मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलवाइए, इसी में भलाई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमंत्री जी के प्रति, हम सभी दिल्ली के लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि नरेला सिटी में एजुकेशन हब की मंजूरी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है।
मैं दिल्ली वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नरेगा में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से उनको बहुत बहुत उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में 12 यमुना के किनारे डायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। 12 दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक कोई पार्क नहीं बना पाई। मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं, इस हाउस को देना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली में यमुना के किनारे आप जरा जाओ तो सही, जरा मेरे साथ चलिए, मैं आपको एयर कंडीशन बस में लेकर चलूंगा और देसी घी का खाना खिलाऊंगा। आप चल के जरा देखिए तो सही ना, जरा आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि जो कुछ मोदी जी ने दिया तो दिल से आप मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं। आप चल के जरा देखिए कि यमुना के किनारे, इनको शंका चले, यमुना के किनारे आ रहा हूं, यमुना के किनारे असीता पार्क जो मोदी जी की सरकार ने दिया है, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, जरा चलकर तो देखिए। यमुना के इसके साथ साथ यमुना वाटिका दी है। आप चलिए जरा सराय काले खां, एक बहुत बेहतरीन पार्क, वर्ल्ड क्लास पार्क मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को दिया है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर। और आज चल के देखिए उसको, जिसके ऊपर लगभग 843 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और जब आप जाएंगे और उस पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगाई गई है, तो उसको देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। यह जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। उस पार्क का नाम है बासेरा पार्क। बासेरा पार्क में, जैसे मैंने आपको कहा है, भगवान मुंडा जी की प्रतिमा लगाई गई है। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लाखों बेचारे खोका पट्टी वाले लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 2 लाख खोका पट्टी के लोगों को कि वो सम्मान और इज्जत के साथ वो अपना कारोबार कर सके, 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपया उपलब्ध कराए हैं। आज खोका पट्टी के लोग दिल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। अभी हाल ही में 30,000 रुपए तक बैंक एटीएम निकासी की सुविधा भी मोदी जी की सरकार ने खोका पट्टी के लोगों को दे दी है। यह सुविधा कभी अमीर लोगों के पास होती थी, मोदी जी ने खोका पट्टी के लोगों को यह सुविधा देकर जो उनको सम्मान दिया है, मैं दिल्ली के लाखों खोका पट्टी के लोगों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लगभग 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान इस योजना को शुरू किया है। 7,000 फ्लैट्स बनाकर दे दिए हैं। बाकी झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए फ्लैट्स बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा लगभग 3,500 झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट दिए, उसकी चाबी दी। और उनके मन से मोदी जी के लिए दुआ निकल रही थी कि मोदी जी, हम जीवन में सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास कभी इस दिल्ली शहर में, जहां अगल बगल में अमीर लोग रहते हैं, हम लोगों को भी इतना शानदार फ्लैट बनाकर आप दे देंगे। केवल फ्लैट ही बना के नहीं दिया, बल्कि उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए खेल का मैदान, पार्क, प्राइमरी स्कूल, पीने का पानी, घर में बिजली। तो ये मोदी जी ने दिल्ली के अंदर एक इतिहास रचा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वासियों को उजाड़ा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं, लंबे समय से दिल्ली में जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनकी दुकानें दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, मोदी जी की सरकार ने 50,000 दुकानों को उनको फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसी 351 सड़कें थी
जिन सड़कों के बारे में जब दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आग्रह किया कि इन 352 सड़कों को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सीलिंग की तलवार लटकी रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 352 सड़कों को कमर्शियल रोड डिक्लेयर नहीं किया। अब क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं है, 8 फरवरी 2025 को जब हम 2/3 बहुमत से ज्यादा 50 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी कमर्शियल रोड को हम जो है इनको कमर्शियल रोड डिक्लेयर कर देंगे, जिससे कि इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सके। 13,000 दुकान जो सील कर दी गई थी उनको डीसील करने का फैसला लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली के अंदर लगभग 1728 कॉलोनीज है। 60 लाख लोग, ज्यादातर लोग बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं। पूरे देश भर के लोग इन 1728 कॉलोनीज में रहते हैं, नारे के जीवन जी रहे थे। मोदी जी की सरकार ने फैसला किया कि हम दिल्ली की सभी 1728 कॉलोनीज को हम नियमित करेंगे, इनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और हम इनको मालिकाना अधिकार देंगे। और सभापति महोदय, जरा और सुन लीजिए, मोदी जी की सरकार आने से पहले यदि इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कोई व्यक्ति घर बनाता था तो एमसीडी और उस एरिया के आम आदमी पार्टी के काउंसलर जबरन वसूली करते थे। अब क्या व्यवस्था की है, जरा वो सुनने वाली बात है। दिल्ली की जिन 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मोदी जी की सरकार ने मालिकाना अधिकार दिया, उनकी रजिस्ट्री की जा रही है और कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी का निवासी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जा रहा है, बल्कि सब रजिस्ट्रार अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाके कैंप लगाता है। लोग लाइन में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहीं उनको रजिस्ट्री करके दे दी जाती है। ये है मोदी जी का न्याय, ये है मोदी जी का गरीब लोगों के प्रति इंसाफ। इसको जरा सुनने की जरूरत है। और इससे आगे जो एक कदम मोदी जी की सरकार ने उठाया है, मैं दिल्ली के 60 लाख अनऑथराइज्ड कॉलोनी के निवासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने ये फैसला ले लिया कि दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में यदि गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक वे अपना घर शान के साथ, सम्मान के साथ, बगैर किसी डर, बगैर भय के बना सकता है। यदि वो अपना घर तोड़कर बनाना चाहता है तो उसको नक्शा पास नहीं करवाना पड़ेगा, वो बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना घर बना सकता है। ये जो ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली की 1700 कॉलोनी के लिए लिया है, मैं दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी के 60 लाख लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी भी देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। 12,000 हर साल प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली के लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर अब जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है, इंडस्ट्रियल इलाकों में केवल इंडस्ट्रियल इलाकों में सिर्फ सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री ही लगेंगी। ये ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। हम दिल्ली वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली के सभी इंडस्ट्रीज के मालिक ये चाहते थे, दिल्ली के लोग ये चाहते थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि दिल्ली प्रदूषित क्यों हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस ऑनरेबल हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा, जरा सुनिए। आप दुनिया में आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिली होगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हम पराली से खाद बनाएंगे और एक केमिकल घोल तैयार किया गया। उसके ऊपर खर्चा हुआ 30,000 रुपया। एक छटाक पराली से खाद नहीं बनी,
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 24 करोड़ रुपया प्रचार और विज्ञापन के ऊपर खर्च कर दिया। आप बताइए कि 24 करोड़ रुपया प्रचार पर खर्च किया जा रहा है और पराली से एक छटा खाद नहीं बनी है। दिल्ली में जो स्मार्ट टावर लगाया गया जिसके ऊपर 23 करोड़ रुपया खर्च किया गया वो बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है। दिल्ली के लोग प्रदूषण से दुखी है, दिल्ली को छोड़कर जा रहे हैं। हमने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया है कि कृपया करके आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए। हम इसको प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को छुटकारा दिलवाएंगे। वो समय आ गया है। हमने दिल्ली के लोगों के साथ आदरणीय सभापति महोदया हमने ये उनको विश्वास दिलाया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में 3 नए कॉलेज भी दिए हैं। मैं ये जानकारी भी और इस ऑनरेबल हाउस को देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने हाल ही में सूरजमल बिहार में दिल्ली विश्वविद्यालय का ईस्ट कैंपस भी दिया है। मोदी जी की सरकार ने हाल ही में द्वारका में दिल्ली विश्वविद्यालय का वेस्ट कैंपस भी दिया है। रोशनपुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर कॉलेज की नींव भी रखी गई है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदया, इसके अलावा मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं इस ऑनरेबल हाउस को, हमारे कांग्रेस के मित्र भी सुने कि जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दिल्ली को 12 नए कॉलेजेस दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और आज मैं जानकारी देना चाहता हूं इस हाउस को कि दिल्ली में 12 कॉलेजेस दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उनको वेतन नहीं दे पा रही है। यह है आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं सभापति महोदया आपको बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ मोदी जी ने जो कुछ व्यवस्था दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में की है, मैंने उसकी चर्चा की है। दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं खोल पाई। दिल्ली के अंदर 50 कॉलेज खोलने का वायदा किया था। दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल खोलने की बात कही गई थी। दिल्ली में 78 स्कूलों को बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति महोदया, आज दिल्ली के 60% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 40% स्कूलों में आज वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और दिल्ली के 70% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। 45% स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? ये वायदा किया जाता है गेस्ट टीचर्स के साथ कि हम सरकार में आएंगे, हम दिल्ली के 25,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे। आज गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर किया गया है। आज दिल्ली के स्कूल्स में 25,000 टीचर्स की कमी है। जो लोग ये कहते हैं, जरा सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं, जरा इनके कारनामे सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 12वीं क्लास में दिल्ली 6ठे स्थान पर रही है, जबकि 10वीं क्लास में दिल्ली का स्थान 15वां रहा है। जरा सुन लीजिए। और दिल्ली का स्थान सुन लीजिए, पटना, भोपाल, प्रयागराज और भुवनेश्वर के बाद है। ये है वर्ल्ड क्लास। आप जरा सुनने का मादा रखिए। आज अध्यक्ष महोदय, बैठिए। सुनने का जरा मादा तो रखो, जरा सुनो तो सही, सुनो तो सही। ये आदरणीय
सभापति महोदया, मैं आज इस हाउस में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा भी है, इसको बर्बाद भी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली को महमूद गजनी ने भी लूटा, मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा और इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लूटा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश के प्रधानमंत्री के पास अपने रहने के लिए घर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 2 कमरे के घर में रहूंगा। मैं आज इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी देना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पुराना उनका घर था, कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली, उसको तोड़ दिया गया। उसके स्थान पर जो 179 करोड़ रुपया खर्च करके शीश महल बनाया, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, उसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 53 करोड़ रुपया उसके निर्माण पर खर्चा हुआ। अंग्रेज के समय के जो दरखत लगे हुए थे, कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई, उनको काट दिया गया। और जो शीश महल बनाया है, जो सबसे बड़ा पाप उन्होंने किया है कि उन्होंने कंपिटेंट अथॉरिटी से उसका नक्शा भी नहीं पास करवाया। बगैर नक्शे पास कराए हुए शीश महल बना दिया गया। आदरणीय सभापति महोदया, उनके घर के बगल में 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उसमें एक जज भी रह रहे थे। उन 21 फ्लैट्स को तोड़ दिया गया। जज जो सबको न्याय देते हैं, वो गुहार करते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं थोड़े समय के बाद ये फ्लैट खाली कर दूंगा। लेकिन एक नहीं सुनी गई। 21 के 21 फ्लैट्स को तोड़कर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस का हिस्सा बना लिया गया। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि उनकी बगल में दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी, उनके बगल में डीडीए के वाइस चेयरमैन की कोठी थी। दोनों कोठियों को दिल्ली मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना लिया गया। और जो 53 करोड़ रुपया में हमारी सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स क्या कहते हैं, यदि आप अपने लिए कुछ भी सड़क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बनाइए आप, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? सभापति महोदया, 10 करोड़ रुपया उस घर के ऊपर खर्च होना था, उसको बढ़ाकर 53 करोड़ रुपया कर दिया गया। टेंडर नहीं बुलाए गए। तो इससे बड़ा मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण आपको पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदया, मोदी जी की सरकार ने, आप जरा, मैं आप ऑनरेबल हाउस को बताना चाहता हूं, हमारा दिल रोता है कि क्या कैसी दिल्ली थी, आज उस दिल्ली का कितना उसको बदहाल बना दिया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए मोदी जी की सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। निरंतर भारत सरकार के जल मंत्री पहले नितिन गडकरी साहब थे, उसके बाद शेखावत जी हो गए। बार बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई कि 8,500 करोड़ रुपया आखिर कहां खर्च किया गया है, उसकी हमें जानकारी दें, उसका हिसाब किताब दें। जल बोर्ड के खातों की तो सीएजी से जांच नहीं करवाई जाती, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है। लेकिन 8,500 करोड़ रुपया इसलिए दिया था कि दिल्ली के जो 24 गंदे नाले यमुना में गिरते हैं, जहां वो नाले गिरते हैं वहां 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। दिल्ली में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया और दिल्ली की यमुना आज पहले से 3 गुना ज्यादा दूषित हो गई है। मैं इस ऑनरेबल हाउस को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, आपको सुनकर हैरानी होगी। मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट
यमुना को साफ करवाते करवाते थक गए। उन्होंने एनजीटी की जिम्मेवारी लगाई कि एनजीटी यमुना की सफाई करवाए। एनजीटी भी यमुना की सफाई करवाते करवाते थक गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एनजीटी ने क्या आदेश दिया? एनजीटी ने आदेश दिया दिल्ली के एलजी को कि आप दिल्ली की यमुना को साफ करने की जिम्मेवारी लीजिए और हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, उसका चेयरमैन आपको बनाया जाता है। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिन रात लगकर कमेटी के मेंबर्स के साथ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर यमुना का 11 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच साफ कर दिया और उसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि ये जो कार्य एनजीटी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया है इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। यदि स्टे नहीं हुआ होता तो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एनजीटी के आदेश पर जो उन्होंने यमुना की सफाई का काम शुरू किया था, आज यमुना की सफाई हो जाती। और आज इस हाउस में मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, आपने यमुना मैया के साथ पाप किया है। 8 फरवरी 2025 को जब नतीजे आएंगे, यमुना मैया का श्राप आपको लगेगा। आज ये बात मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। आपका झगड़ा रामवीर सिंह धूरी से हो सकता है, आपका झगड़ा मोदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन यदि यमुना दूषित हो गई है और वही यमुना का पानी जिसको ट्रीट कर कर हम सब लोग लुटियन जोन में पीते हैं, तो यदि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक शानदार, एक ऐतिहासिक पहल की, उसका स्वागत होना चाहिए था, उसका विरोध किया गया। आदरणीय सभापति महोदया, हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली के जल बोर्ड को लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उपलब्ध कराए। आज जो 7,000 करोड़ रुपए दिए गए, उनका कोई हिसाब किताब केंद्र सरकार को दिया नहीं जा रहा है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है, दिल्ली जल बोर्ड ने 7,500 सैंपल्स उठाए, उनमें से 2,500 सैंपल्स फेल हो गए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट यह है कि इस पानी को पीकर दिल्ली के लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। जल बोर्ड आपके शासन में हमारे बैठे हैं ना, क्या नाम है हमारे एमपी साहब, 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। बार बार हाईकोर्ट ने कहा कि खातों की जांच सीएजी से कराई जाए, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। आज तक खातों की जांच नहीं हुई क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोट 2800 करोड़ रुपए का, वो तो सारी चीजें अभी, क्योंकि आगे जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, उसकी जांच पड़ताल तो कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने वायदा किया था हम दिल्ली में 50 कॉलेज खोलेंगे, हम दिल्ली में नए 500 स्कूल खोलेंगे, उन लोगों ने 500 स्कूल तो नहीं खोले, 50 तो नए कॉलेज नहीं खोले, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी नई शराब नीति लाई गई जिसके बारे में कहा गया कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जब हाउस में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन था, कहा गया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। यह भी कहा कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। कई हजार करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया गया। शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक होता था, उसको बढ़ाकर
उसको बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेजिडेंशियल एरियाज में जब शराब के हजारों ठेके खोले, हमने हाउस में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर कि हम दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे, अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भगवान की सौगंध खाते हैं, यदि हम विफल हो गए तो हाउस की मेमोरी छोड़ के चले जाएंगे। अरे स्कूल खोलने वालों, कॉलेज खोलने वालों, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम शुरू कर दिया। स्कूल कॉलेज खुले नहीं, अद्धा के साथ पौवा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। ये हाल हमने दिल्ली का होते हुए देखा है। और अंत में मैं, अब क्योंकि आपने घंटी बजा दी है सभापति महोदया, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा पानी भी ले लो। वो आप बोल रहा है, कंप्लीट करिए माननीय सदस्य प्लीज। वो आपको बोल रहा है। अभी सुनाया तो है शीश महल पर। माननीय रामवीर जी, विदुड़ी जी प्लीज। सभापति महोदया कंप्लीट करिए। आपकी घंटी बज गई है। मैं अपने भाषण को समाप्त करने जा रहा हूं इन शब्दों के साथ। आदरणीय सभापति महोदया, 18 फरवरी 2025 को हम आएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारे अपोजिशन के साथी हैं, छोटी मोटी टोका-टाकी करते रहे, लेकिन दिल से तो वो भी सुनना चाहते थे कि जिस आदमी ने इस दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया, इसको जितना भी ठोका जाए, ये हाउस भी सुनना चाहता है। ये हाउस की भावना मैंने देख ली। धन्यवाद। और दिल्ली के लोग यदि सुन रहे होंगे तो आज उनके मुंह से आवाज निकल रही होगी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है। इस दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है। 8 फरवरी को दिल्ली में मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी। और मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, दिल्ली वासियों का ये सपना मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद जी। माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी के संसद के अभिभाषण पर माननीय सदस्य विदुड़ी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। 75 वर्ष भारत के संविधान के हो गए और महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। बजट सत्र है, बाकी है, नया सत्र है, तो बहुत ही स्थापित परंपरा है। उपसभापति जी, सदन को यह बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठते हैं या बैठती हैं। वो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 79 के मुताबिक वो संसद के पार्ट भी होते हैं। ये मुझे बताना बहुत जरूरी है इस सदन में
there shall be a parliament for the union of which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as Council of States and House of the People. लोकसभा और राज्यसभा। तो महामहिम राष्ट्रपति संसद के पार्ट है और हम सभी का नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही साधारण परिवार से आगे बढ़ी और अपनी मेहनत, शिक्षा, लगन और सेवा भाव से वो राज्यपाल बनी। और मैं कहना चाहूंगा, राज्यपाल से हटने के बाद वो अपने गांव चली गई। उनके परिवार में कई कष्ट हुआ, बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला और बाद में मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री पर कि एक वंचित आदिवासी समाज की एक योग्य नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और उस सभापति जी, मैं ये बात बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में जब से वो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी गरिमा, अपनी शालीनता से राष्ट्रपति के पद को एक नई ऊंचाई दी है। ये मैं सदन में कहना चाहता हूं। राजनीति में उस सभापति की विरोध होता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन विरोध का कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी। और ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में? पुअर लेडी, ये शब्द है क्या? क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। उपसभापति जी, मैंने माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दिया जाएगा। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपका नाम ले लिया हमने। किसी का आई एम नॉट यील्डिंग, काइंडली सिट डाउन, आई एम नॉट यील्डिंग। उपसभापति जी, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य, आपको अवसर दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये बात इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद राष्ट्रपति भवन के द्वारा बोला है तो सुनना सीखो। शायद पहली बार एक प्रेस रिलीज करके उसका प्रतिकार करना पड़ा और मैं वो पढ़ना चाहता हूं। द प्रेसिडेंट ऑफिस बिलीव्स it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in Indian language as Hindi and thus formed a wrong impression. In any case, such comments are in poor taste, unfortunate and entirely avoidable. मैंने राष्ट्रपति जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो मेरे पास है और मैं आज इस सदन के ऊपर अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जिम्मेवार लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसकी बहुत भर्त्सना करना चाहता हूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था और हम सबों को बहुत गर्व है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पर, जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, उन्होंने भाषण दिया। लेकिन उपसभापति जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। तो कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का एक बड़ा परिवार है, वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है और आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे।
और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी, 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी, त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। ये उपसभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, 57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। और दो व्यक्ति, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा, बैठिए बैठिए सर, ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे। और सर एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं उनके अंतिम संस्कार में, आप भी चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। और सर ये मैं पढ़ रहा हूं इस किताब से, कोई छुपाने की बात नहीं है। देखिए, नेहरू टोल्ड, मैं इसके पेज 339 को पढ़ रहा हूं सभापति जी। नेहरू told Radhakrishnan that he was going to Rajasthan to collect money for Prime Minister Relief Fund and would not be able to attend the former President's funeral in Patna. He added, I do not see any reason for you to go. Radhakrishnan replied, no, I think I must go and attend the funeral. That respect is due to him and must be paid. I think you should also give up your tour program and come with me. But Nehru stuck to his program. ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में नहीं गए। सर आज जब बात चली है सर, तो इस किताब की एक और बात कोट करनी है और मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। ये मौलाना आजाद के साथ दुर्गादास हर रविवार को कॉफी पीते थे और सर उन्होंने अपने मरने के 2 साल पहले एक बात कही थी, क्योंकि हर संडे को दुर्गादास उनसे मिलते थे। और क्या कहा था सर, मैं उसको आज रखना चाहता हूं। बट आजाद revised his opinion of Nehru in the last 2 years of his life. Indeed, इसको सुने, इसको आप लोग भी सुनिए। Indeed, he went to the extent of expressing regret for being unfair to Patel and asserting that he was sure that the country would have been better off if Sardar Vallabhbhai Patel had been the Prime Minister. What motivated this change? Toward the end of his life, Azad realized the best protection for Muslims was the goodwill of Hindus and a strong government. He told me he had come to the conclusion that Nehru policies has weakened the administration. ये सब 60 साल पहले की किताब में पढ़ रहा हूं। उपसभापति जी, सवाल सिर्फ
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तय नहीं है। याद करिए, फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति, इमरजेंसी लगाई गई थी, हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनको बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी को साइन करवाया गया। ये राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं ये लोग। ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी का क्या व्यवहार था, ये सब रिकॉर्ड की बात है, ये हम सभी जानते हैं। और सर, प्रणब मुखर्जी तो इन लोगों का बस चलता तो कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बनने देते, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये तो हमारी सरकार है, उन्होंने सम्मान से काम किया और उनको भारत रत्न दिया। ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। हाँ? पर माननीय मित्रों ने साफ कहा, दे हैव गॉट ए क्रोनिक हैबिट टू इंसल्ट द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू, ये उनकी परंपरा बन गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। सर, एक दूसरी बात कहनी है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि तीसरी बार जीतने पर सरकार के विकास की गति को एक नई ऊर्जा मिली है। वो पहली जीत पर परेशान थे 14 में, कैसे हम जीत गए। 19 में और परेशान हो गए, अब तीसरी बार जीत गए तो कहे कि साहब कमजोर हो गए। तो जनता ने जवाब दिया तो हरियाणा में कस के पिट गए। उसके बाद जनता को लगा नहीं मोदी जी को और मजबूत करना है तो महाराष्ट्र में और कस के पिट गए। अब 8 तारीख को दिल्ली की बारी है। बिहार पर काफी बोल रहे, आ रहा हूं। सर, इतना सिमटते जा रहे हैं उपसभापति जी, इतना सिमट गए हैं, फिर भी वही अहंकार है, वही गुरूर है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। थोड़ा तो सम्मान करना सीखिए। और कल मैंने देखा हमारे विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात करें? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मैंने आर्टिकल 79 जान के पढ़ा कि राहुल गांधी पढ़े और समझे, वो तो होमवर्क करते नहीं, आप जानती हैं। तो मैंने आज जान के रिपीट किया कि उपसभापति जी, तो एक नई ऊर्जा की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से
और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर कर। उपसभापति जी नई ऊर्जा की बात की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात नहीं करते, बदलाव को करके दिखाते हैं। ये अंतर है। जैसे कहा गया था ना, गरीबी हटाओ, बहुत बड़ा नारा चला था, क्या हुआ? और यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, किसानों के लिए जिएगी, तो करके दिखाया। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं? कितने वर्षों से मिल रहा है? सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं कि नहीं? किसानों के अकाउंट में 41,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता या नहीं जाता? जाता है। आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? बनी है। और ये सारा स्कूल हो या अस्पताल हो या आयुष्मान भारत हो या गरीबों की सेवा हो या लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, ये भारत के बदलाव के जो नए कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी घोटाले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उस समय क्या था उपसभापति जी? मैं उस समय उस हाउस में था। हमने कहा कि अब 1-2 घोटाला हो गया, थोड़ा शांति हो, फिर नया घोटाला आ गया। कभी कोयला घोटाला है, कभी 2G घोटाला है, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला है, कभी आपके वो भी है अंतरिक्ष देवास घोटाला। तो सभापति जी, हम लोग पंच तत्व से मिले, हम लोग, ये शरीर पंच तत्व से बनता है ना। तो बाद में मालूम हुआ कि उनकी सरकार को यह बताया गया था कि पंच तत्व का सिद्धांत तब तक सफल नहीं होगा जब तक 5 तत्व में घोटाला नहीं करोगे। अब आप देख लीजिए, जमीन का घोटाला करके दिखाया, आकाश का घोटाला हेलीकॉप्टर घोटाला करके दिखाया, वायु का 2G घोटाला करके दिखाया, जल में सबमरीन घोटाला करके दिखाया, और ये सब नहीं छोड़े तो पाताल भी चले गए, कोयला घोटाला कर दिया। क्या बोलेंगे ये लोग? और आज जो स्थिति आ रही है, मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। और मैं उनको आज उनके खींच को मैं समझता हूं। राजीव गांधी का एक वक्तव्य था ना कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो गांव में 100 रुपया पहुंचता है। ये अंतर है डिजिटल तरीके से। सभापति जी, थोड़ा मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति ने उसकी चर्चा की है। बाकी चूंकि हमारे बहुत ही गुणी मित्र रामवीर बिदुड़ी जी ने बाकी क्या शौचालय कितने बने, क्या बने, वो चर्चा की है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलना जरूरी है। याद करिए कांग्रेस वालों,
2014 में भारत की अर्थव्यवस्था थी फ्रेजाइल 5, मतलब इतनी कमजोर 5 कि कब गिर जाए पता नहीं। और आज मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव इस हाउस में बताना चाहता हूं। मैं 13 में सभापति जी न्यूयॉर्क गया था एक सेमिनार को एड्रेस करने के लिए। उस समय मैं विपक्ष में उपनेता था राज्यसभा में। तो मालूम हुआ कि मैं आया हूं, मैं एक निजी यात्रा पर था। तो जितने भारत में पूंजी निवेशक हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है, क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने जा रही है? तो सभापति जी हम उनकी तरह नहीं है कि विदेश में जाके भारत की आलोचना करें। हमने एक ही बात कहा कि नहीं, भारत ठीक होगा। उन्होंने कहा कि क्या आपकी सरकार आ रही है? हमने कहा जरूर आ रही है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी। और आज वो फ्रेजाइल 5 से भारत की इकोनॉमी टॉप 5 पहुंच गई है। और सभापति जी मैं इसमें क्या वर्ल्ड बैंक, क्या इन्वेस्टर्स, इन सबों ने भारत की अर्थव्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुझे मालूम है उनको पछता नहीं है, इसलिए उनकी परेशानी मैं समझता हूं। लेकिन अगर आपको 5वां से परेशानी है तो हम तीसरा भी करके दिखाने वाले हैं। आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन के दिखाएगी। इसलिए सर पूंजी निवेश कैसे होता है, ये बहुत बेसिक बात समझने की जरूरत है। आपके यहां सरकार कैसी है, सरकार स्टेबल है कि नहीं, पॉलिसी स्टेबल है या नहीं, निर्णय ईमानदारी से होते हैं या नहीं, ये सब बातें देखनी पड़ती है। और जब ये होता है तो जनता विश्वास करती है, क्योंकि भारत की उद्यमशीलता बढ़ती है। आज देखिए माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के डिजिटल बदलाव की चर्चा की है। क्या है डिजिटल बदलाव? ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो कार्यक्रम शुरू किए गए, आज वो आधार का कितना विरोध किया था इन लोगों ने। आज आधार के माध्यम से जो डिजिटल बायोमेट्रिक्स है वो सीधा आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। 135 करोड़ आधार कार्ड है सर। मैडम 120 करोड़ मोबाइल फोन है, जिसमें 95 करोड़ स्मार्टफोन है, सब में इंटरनेट है। आज गांव-गांव में लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं और गूगलिंग करते हैं और सर्फिंग करते हैं। ये देश का बदलाव हुआ है। आज देखिए पूरा कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम काम हुआ कि नहीं, अदालतों में सुनवाई हुई या नहीं हुई, स्कूलों में पढ़ाई हुई या नहीं हुई, पूरा देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से चला। और आज डिजिटल पेमेंट जिसकी चर्चा माननीय राष्ट्रपति जी ने की, क्षमा करें, भारत का डिजिटल पेमेंट दुनिया का 50% यहां होता है। क्यों? गरीब आदमी भी, इनको परेशानी होती है कि गरीब आदमी इंपावर होता है। इनको परेशानी होती है कि एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला भी आजकल डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इससे इनको परेशानी होती है कि मोदी जी ने क्या कर दिया। तो हम करते रहेंगे, क्योंकि बदलने की हिम्मत है हमारे पास और हमारे नेता की सोच है तो जमीन पर उतारते हैं, इसलिए कर रहे हैं। सभापति जी एक दो बात विदेश नीति और रक्षा नीति की, उसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। याद करिए इनकी सरकार में क्या आलम था कि देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, याद है ना? इस पर चर्चा बहुत हुई है इस सदन में, और बुलाइए रिकॉर्ड देखिए। अगर बाहर से नहीं पहुंची वेपन तो लड़ाई करना मुश्किल है। आज मोदी जी की अगुवाई में जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, भारत में ये हाल है कि हम भारत में मेड इन इंडिया डिफेंस ही नहीं बना रहे हैं, उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। अभी आपने देखा होगा 2 बड़े बड़े युद्धपोत मेड इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां डेडिकेट किया है। और सरहद पर सड़कें बनी हैं,
निकलिए लद्दाख से, पहुंच जाइए अरुणाचल, आपको हर जगह सड़कें मिलेंगी। उस सभापति जी, आज इस सदन में मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या हाल था? इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम सरहद पर सड़कें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको चीन को इरिटेट नहीं करना है। रिकॉर्ड पर है। अब देखिए बस, अच्छा बैठिए। मैंने नाम नहीं लिया, मैं रिकॉर्ड पे रख दूंगा अगर कहेंगे। बैठिए बाप, चलिए। उस सभापति जी, एक बार गडकरी जी अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, उन्होंने कश्मीर के स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, मैं उसका सचिव था। हम लोग लद्दाख गए थे, वहां पर बताया गया, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं मैडम। माइक मैडम मैंने यील्ड नहीं किया। Ma'am, rules to be observed while speaking, 352. A member while speaking shall not make a personal reference by making way of an allegation, putting a motive of questioning the bona fides of any member of the House. Ma'am, he's been continuously referring to Rahul Gandhi ji, former defense minister, while speaking. He was a former law minister, ma'am. He knows the rules and procedures of the House. It has to be removed. Madam, he's making an allegation about China, which is baseless and political. It has to be removed from the record, ma'am. मैं एक सार्थक आलोचना कर रहा हूं राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर वो नहीं समझते तो बैठिए। उस सभापति जी, तो हम लोग गए थे लद्दाख, तो वहां मालूम हुआ कि वहां पर मुखिया लोगों ने कहा कि हमारी ग्रामीण सड़कें नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? कहा उधर से विरोध होता है। का मतलब तो राह रुक जाता है। हमने सेना के लोगों से बात किया, कहा दिल्ली से आदेश है कि चीन को इरिटेट नहीं करना है। यहां पर आकर के मैंने सवाल किया था, मैं राज्यसभा में था, वो कहा गया कि रवि जी सवाल मत पूछिए, ये बहुत सेंसिटिव है। और आज हमारे मोदी जी की सरकार है, कोई कुछ भी कहे, लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें बन गई है और सेना की गाड़ी तो क्या बात करेंगे? एक पिटाई किया उरी में और फिर दूसरी पिटाई किया। और इसकी अब हिम्मत है क्या कोई मुंबई और दिल्ली के हमलों का कोई हिम्मत कर सकता है क्या? हम शांति में, हम पुलवामा में अटैक हुआ तो पिटाई भी करके ठंडा कर दिया। ये हिम्मत है हमारी। और आज उस सभापति जी, आज कश्मीर का चुनाव हो गया, कितना हल्ला करते थे लोग, 370 हटेगा तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। अब देखिए, हमारे एक साथी ने सही कहा, खून का नदी बहे, ये भी बोलते थे। आज मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर। हिम्मत दिखाई और करके दिखाई। और आज मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस हिम्मत के साथ इन्होंने पूरे मामले को क्रियान्वित किया। कितनी शांति है, देखा आपने? जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां तिरंगा लहरता है और भारत माता की जय। और अगर कोई पाकिस्तान की शाह पर घुस गया तो उसकी जिंदगी 2 दिन की होती है, उसमें उसका सफाया हो जाता है। क्या अंतर है? अंतर यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कही है, पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, लेकिन उधर से गोली चली तो तुम गिनती नहीं करोगे जब तक ठंडा नहीं कर दो। ये फ्रीडम दिया। जब देश के नेता
देश की सेना के साथ इस बहादुरी से खड़े होते हैं तो देश के जवानों का नई हिम्मत आती है। उस सभापति जी, आज मैं बहुत गर्व से बोलता हूं जब मैं देखता हूं राजपथ पर हमारे देश की बेटियों को कमांड करते हुए, जब मैं देखता हूं देश की बेटियां पायलट आजकल फाइटर प्लेन उड़ाती हैं राफेल के साथ, तो देश में एक नया उत्साह बनता है। क्या वो ड्रोन दीदी हो या जेट की पायलट दीदी हो, क्या वो बीमा सखी हो या बीएसएफ सीआरपीएफ की जवान लेडियां, हमारी बहनें जो सरहद पे सुरक्षा करती हैं, देश की बेटियों को एक नया सम्मान दिया है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बात कही है। और ये इसीलिए हुआ उस सभापति जी कि हम जब कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस देश की बेटियां भी उसमें आती हैं। और मोदी जी ने कहा देश की बेटियों का विकास बहुत जरूरी है। और सर यही सोच थी कि एक वंचित समाज की अपनी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, ये भी उसी सोच का परिणाम है। चलो क्या बात करेंगे हम लोग, देश का बदलाव कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। क्या अर्थशास्त्र, क्या आपके सुरक्षा, क्या एम्पावरमेंट, क्या महिलाओं का एम्पावरमेंट, सभी क्षेत्रों में आप देखिए, क्या डिजिटल, सभी क्षेत्रों में इसे कहते हैं बदलाव। किसानों किसानी की बात तो बहुत की गई है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन किसानों के बारे में हम लोग की सोच क्या है। अरे भाई जरा सा 84 याद रखो, हम पर बहस मत करो, चुप रहो, चलो। हाँ 84 में क्या हुआ था, आप उनके साथ खड़े हो, जरा शांत हो जाओ। उस सभापति जी, मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूंगा, और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बताना, कि सबकी चिंता की गई कि नहीं। और आज मैं इस सदन में बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अगर गैस फ्री दिया गया तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? नहीं। अगर ग्रामीण सड़कें बनी तो क्या ये कहा गया कि यहां पर अल्पसंख्यक का परिवार रहता है, यहां से सड़क को साइड कर दो, ऐसा कहा गया क्या? नेशनल हाईवे बना तो क्या कुछ लोगों को छोड़ दिया गया? कभी नहीं। हमें कोई वोट दे या न दे, हम कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास, तो सबके लिए हम काम करते हैं, ये काम करके दिखाया। और उस सभापति जी, यूपी बिहार की बात कहने की जरूरत नहीं है, मैं बिहार से आता हूं, अभी चर्चा करने जा रहा हूं। वहां पर क्या हुआ, मुख्यमंत्री कहते थे यहां सड़क मत ले जाओ, हमको वोट नहीं दिया। ये सच्चाई है कि नहीं? यूपी में सच्चाई है कि नहीं? तो ये हमारे मोदी जी की सोच है, और हम लोग को उसने ईमानदारी से कहा कि सबको एक निगाह से देखो। उस सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं, अब मखाना बोर्ड बिहार में बना है तो बड़ी हाय तबाह मची हुई है। हमारे गोपाल जी ठाकुर कहां हैं? है ना, मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है, गोपाल जी हैं, अशोक यादव हैं, लोग बहुत घूमे हैं। मखाना कौन उगाता है? जो सबसे दलित होते हैं ना, वो मखाना उगाते हैं। और मखाना की संभावना बहुत थी, हम लोग की भी आग्रह थी, वहां के सांसदों ने कहा। लेकिन पूछ क्या रहे हैं, मखाना बोर्ड बिहार में क्यों बन रहा है? उस सभापति जी, आज थोड़ा मेरी बुद्धि चकरा गई, तो मुझे लगा कि सदन में थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। टी बोर्ड कहां है? कलकत्ता में। रबर बोर्ड कहां है? कोट्टायम केरला में, क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक चाय पैदा होती है आसाम के साथ, और केरला में रबर पैदा होता है। कॉफी बोर्ड कहां है? कर्नाटका में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कॉटन होता है। टोबैको बोर्ड कहां है? गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहां है? कोचीन केरला में। तो क्या केरला में मखाना होता है? क्या मतलब है इसका?
अरे मखाना बिहार में होता है तो मखाना बोर्ड तो बिहार में ही खुलेगा ना। सभापति जी, एक नारा हम लोग सुनते थे बचपन में, पढ़ना लिखना सीखो। तो मैं आज कहूंगा कांग्रेस के मेरे मित्रों, होमवर्क करना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार इस देश का है ना। अब कह रहे हैं कि खाली दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव के लिए बजट आया, तो भाई आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात मान जाइए ना। जो मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस सभापति जी, क्या मिडिल क्लास के लोग सिर्फ दिल्ली में रहते हैं? बिहार में नहीं है क्या? मुंबई में नहीं है? गुजरात में नहीं है? कलकत्ता में नहीं है? चेन्नई में नहीं है? केरला में नहीं है? ये कौन सी सोच है कि मिडिल क्लास को जो मिडिल क्लास को दिया गया है वो खाली दिया गया है यहां के लिए? ये बहुत सोच गलत है। जहां तक सर बात है बिहार की, सर बिहार के बारे में आज बिहार के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचली हूं। बैठिए। अच्छा बैठिए। सभापति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पूर्वोत्तर के विकास की चर्चा की है और पूर्वोदय की भी चर्चा की है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं और पटना का सांसद हूं। विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और आज जो लोग कह रहे हैं, तो मेरा एक और परिचय है माननीय उपसभापति जी, मैं सांसद भी हूं, पेशे से वकील भी हूं। मुझे प्रभु राम लल्ला और हिंदुओं का केस अयोध्या में बहस करने का सौभाग्य मिला हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में, और चारा घोटाला और कतरा घोटाला में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील भी मैं ही हूं। स्वर्गीय सुशील मोदी हमारे पिटिशनर थे। उस 15 साल में बिहार में क्या होता था, कितनी लूट होती थी, कितना भ्रष्टाचार था, ये सभी जानते हैं। आज जब बिहार बदल रहा है तो परेशानी हो रही है क्या? आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है तो दर्द हो रहा है क्या? बिहार का विकास हो रहा है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि ये विकास। ठीक है, बैठिए। उपसभापति, अच्छा आप बैठिए। अच्छा बैठिए। उपसभापति जी, आज इस पूर्वांचल से बाबू कुंवर सिंह आते हैं, पूर्वांचल से विद्यापति आते हैं, इसी पूर्वांचल से भिखारी ठाकुर आते हैं, इसी पूर्वांचल से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण आते हैं, इसी पूर्वांचल से रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, और इसी पूर्वांचल से भारत रत्न गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर आते हैं, जिन्होंने विकास का काम किया है। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी काशी से ही सांसद हैं, पूर्वांचल से सांसद हैं, बैठे हुए हैं सब पूर्वांचल। सब धन्यवाद। और हमारे धर्मेंद्र यादव जी कहां बैठे हुए हैं कि गायब हो गए? आप बैठिए। आजमगढ़ भी पूर्वांचल में आता है, धर्मेंद्र बाबू ध्यान रखिए, बैठिए। सर, आज पूर्वांचली दिल्ली में बसे हुए हैं, देश भर में बसे हुए हैं। आज तो मैं सर आज इस सदन में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आप 5 मिनट समय दीजिए। ये पूर्वांचली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, फिजी कहां नहीं गए अंग्रेजों के द्वारा 150 वर्ष पहले गुलाम बनाकर।
और वहां पर सर गिरमिटिया घाट है। तो गिरमिटिया घाट है तो मैंने जानने की कोशिश की क्यों गिरमिटिया है, तो बताया गया कि उनको गिरमिट घाट में लेकर आते थे। आज उस संघर्ष से वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, तो हमें उस पूर्वांचलियों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज जो ये पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा, ये महामहिम राष्ट्रपति ने बात कही है। एक अंतिम बात जो मुझे कहनी है, सभापति जी, सरदार पटेल के 150 वर्ष पूरे हो गए, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। हमने क्या उनके साथ न्याय किया क्या? बड़े सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने उनको याद किया है। और मैंने कई चीजें पढ़ी दुर्गादास की किताब से, और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। क्यों? देश के रत्न थे। 550 रियायतों में एक को छोड़कर बाकी सब रियासतें सरदार पटेल ने हैंडल किया, वहां कोई समस्या नहीं है। एक नेहरू जी ने हैंडल किया कश्मीर को, नरेंद्र मोदी को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और आज वो वहां चुनाव होकर आज सरदार पटेल के साथ यह अन्याय क्यों? आज मैं उनके 150वीं जयंती पर यह बात उठाना चाहूंगा। माननीय स्पीकर सर, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 91 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। अगर 91 में परिवार के लोग प्रधानमंत्री होते तो फिर भी यह काम नहीं होता, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। मौलाना आजाद मरे 1959 में, एक महान देशभक्त, उनको आपने नहीं दिया भारत रत्न। क्यों नहीं दिया? आपने बीच में बहुतों को दिया, चलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरदार पटेल को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को मिला भारत रत्न 1992 में, 1959 में मरे, इतने दिनों के बाद। यह है इनकी सोच। तो अटल जी की बात आती है, छोटे सोच से कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों आलोचना सरदार पटेल की, क्यों आलोचना मौलाना आजाद की? क्योंकि दोनों नेहरू जी से सवाल पूछते थे। मैंने डॉक्यूमेंट से उनको दिखाया है। आज जब आजाद भारत 75 इयर्स हो गया है, तो हमें लगता है कि हमें इन सवालों को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, इन सवालों को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने, स्पीकर सर, एक और बात की है, और वो क्या है कि उन्होंने सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की बात की है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं लेना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इस सदन में कुछ कहने की इच्छा है। स्पीकर सर, बहुत से मित्रों को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर थे। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत प्रामाणिक जज थे। जब उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर इस्तीफा दिया और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने, तो गए कश्मीर कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, और उनके एक सेक्रेटरी थे 25 साल के, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और वो जब माधोपुर की चौकी से घुसे, उन्होंने कहा, अटल बिहारी जाओ देश को बताओ मैं कश्मीर में बिना परमिट के घुस गया। एक हम लोग बचपन से एक बात कहते हैं माननीय स्पीकर सर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो विधान,
दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और आज जब कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है कस करके, तो लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सही हुआ। अध्यक्ष जी, राजेंद्र बाबू 370 के पक्ष में नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे वी शंकर आईसीएस। उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में जब सरदार पटेल लौट करके आए तो पूछा कि आपने क्यों मान लिया? कहा देखो, नेहरू जी मुझसे बात करके अमेरिका चले गए, सरदार पटेल इसको देख लीजिएगा। अब गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको मूव किया। सारे कांग्रेसी खिलाफ में थे। सुनिए आप, ये क्यों कर रहे हैं हम? हैदराबाद को नहीं दिया, जूनागढ़ को नहीं दिया, क्यों दे रहे हैं कश्मीर को? तो सरदार पटेल ने सबको समझाया। तो बाद में उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये ठीक हुआ। उनका जवाब था गलत तो हुआ है। जिस दिन इस देश में एक बहादुर प्रधानमंत्री आएगा, इसको खत्म कर देगा। ये उनके सेक्रेटरी में कोट कर रहा हूं, वी शंकर आईसीएस, जो उनके थे प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। क्या बात करते हैं आप लोग। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जब पूरे 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमें बहुत आगे बढ़ाना है। एक दूसरी बात कहनी है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रतिष्ठापन की बात की है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें भगवान महावीर की 25वीं जयंती, महाकवि संत तिरुवरुर की स्मृति में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, काशी तमिल संगम, काशी तेलुगु संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम। ये काशी तमिल संगम में किस बात इन लोगों को क्यों नहीं सूची करें? इतने साल राज किया इन लोगों ने। जो हमारे तमिलनाडु, माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, कुड दे नेवर थिंक दैट दे नीड टू ब्रिंग तमिलनाडु एंड काशी टुगेदर बिकॉज ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेज? कभी नहीं। इसलिए एक बात उठती है माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, वोट बैंक। ये स्पीकर सर, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? 3 तलाक तो वोट बैंक, वक्त की बात तो वोट बैंक, हार गए, सिमटते जा रहे हैं, फिर भी वोट बैंक। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, बिहार से मैं आता हूं, 90 में स्वर्गीय मुलायम सिंह के पीछे चली कांग्रेस यूपी में और लालू प्रसाद भी चली बिहार में। आज कितने साल हो गए सर? 25 और 10 35 साल। 35 साल में वो कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां पहुंच गए? कभी सोचते हैं कि वोट बैंक पर विचार करना चाहिए? और विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंच गए, ये भी देखिए। ये देश कैसे बदल रहा है, इसको समझिए। और ये देश अब राष्ट्रवाद पे चलेगा। ये देश अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित होकर चलेगा। ये देश राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करके चलेगा। ये देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है और बनकर रहेगा। सर उनको एक बात समझ में नहीं आती है, दुनिया कैसे बदल रही है। जितने भी गल्फ कंट्री के लोग हैं, सबों ने अपने देश का सर्वोच्चतम अवार्ड भारत रत्न का हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, प्रेम से दिया है, उनके काम के कारण दिया है। फिर भी क्या संकेत है सर? वो एक गाना है ना, मुझे याद आता है, समझने वाले समझ गए हैं,
ना समझे वो नारी है। कब समझेंगे? ये वोट बैंक के कीचड़ की दलदल में फंसी हुई हिंदुस्तान की राजनीति को बदलना जरूरी है। देशभक्तों की बिना विभेद के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और अभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है वक्फ बोर्ड का। सर आपको बताऊं, मैं वक्फ बोर्ड की एक कहानी खत्म करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। ये वक्फ की संपत्ति का क्या अत्याचार होता है। हमारे पटना कॉन्स्टिट्यूंसी के शहर में सर एक क्षेत्र बड़ा 2 एकड़ का प्लॉट है सर वहां अरक होता है छठ पर सर। उसके बदले में कब्रिस्तान की जमीन अंग्रेजों ने 1920 में दे दी। 20 में वहां कब्रिस्तान है, फिर भी दावा क्या है, ये तो वक्फ है सर। और सर हाई कोर्ट में गया तो सरकार ने कहा ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो फिर ट्राइब्यूनल ने बिना किसी नोटिस के डिक्लेयर कर दिया है वक्फ की जमीन है। लड़ाई चल रही है। अरे भैया, वक्फ एक बहुत पावन चीज है। ईमानदारी से जो देते हैं अपनी संपत्ति को, वो अल्लाह के नाम पर उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और दुरुपयोग होगा तो वक्फ का कानून आएगा, जो आ रहा है ईमानदारी से, ये समझिए। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण समग्रता का है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, ऑल इनकम्पासिंग। जहां गरीब की चिंता है, जहां बदलाव की चिंता है, जहां भारत के आर्थिक विकास का आत्मविश्वास है, भारत की सेना सुरक्षा के बारे में एक नया संकल्प वो मोदी जी की सरकार के द्वारा दिखाई पड़ा है, जो कश्मीर की स्थिति है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सूरत तक भारत जुड़ा है, उसकी भी कहानी है। यही तो एकता होती है ना, यही एकता होती है। आज कोई निकलता है सूरत से तो मन करता है चलो गाड़ी से ही कामाख्या चले जाएं, दर्शन करके आ जाएं। और मैंने सर वो जगह देखी है कन्याकुमारी में, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी की सड़क समाप्त होती है। मैं वहां गया था सर, और मैं उस गोल चक्कर पर रुका और मैंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया कि अगर एक सपना होता है, कितना विरोध हुआ था इनके द्वारा, क्या कर रहे हो, कहां से जमीन आएगी, कहां से लोहा आएगा, कहां से सीमेंट आएगा। और आज देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बन गई। और देखिए सर, विकास की भूख होती है तो पार्टी के काम से मुझे 5 आसाम की लोकसभा देखने का दायित्व मिला था। मैं सर लौट रहा था तो रास्ते में लगभग 1,000 आदिवासी खड़े थे। कहे कि आप आए हैं, हमारी इस नेशनल हाईवे में 25 किलोमीटर नहीं बना है, बनवा दीजिए। हमने पहले विरोध किया था। ये होता है विकास की भूख, जब ईमानदारी से उसको काम किया जाता है। सर वो जितना बोले देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा। हमारे नेता दुनिया के एक लोकप्रियतम नेता हैं, उनकी बात दुनिया सुनती है और सुनेगी। थोड़ा बहुत आप भी सुनना सीख जाइए तो अच्छा रहेगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, जितना भी विरोध करें, देश अब सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच, भारतीय संस्कार, भारतीय प्रेरणा, भारतीय संस्कृति के साथ चल पड़ा है और रुकने वाला नहीं है। इस पूरे राष्ट्रपति जी के भाषण में उसका बहुत बड़ा जिक्र है सर। आपने मुझे समय दिया सर, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं, उन्हें संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हो
जिन्हें वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा जिसके संबंध में पर्चियां बताए गए समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। सदस्य यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो कृपया उसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें। माननीय श्री राहुल गांधी जी। Thank you, Speaker Sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera. Thank you. Double thank you, sir. I heard the President's address. I sat there with Kharge ji and I listened to it. And I must say, I struggled through the President's address to maintain my attention on what was being said. Because I had heard pretty much the same President's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. We have done this, we have done this, we have done this, 50 or 100 things that the government has done. And so while I was sitting there, I was thinking, okay, I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of President's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? How would that address be different than the address we heard? Because it's no point me saying that it is a laundry list and then not providing a alternative idea. And so today I would like to lay out some dimensions of what an alternative address would look like, what the India Gathbandhan would probably focus on, and where we would lay emphasis. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. Manufacturing fell
from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed, because manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. So the first question that any alternative vision would answer to the youngsters of our country is, okay, what and how are we going to solve this problem of employment? Any country basically organizes two things. You can organize consumption, and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country in organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they all spiral. They are all rising. And everybody understands that social tension is on the rise in India. So now the next question comes, okay, so where is this employment going to come from? What is India going to produce? And for that, I'd like to tell all the youngsters of this country that there is a revolution taking place, an exciting revolution. The world is transforming completely. And the change that is taking place, at the heart of the change that is taking place, we are moving from the world of the internal combustion engine to the world of the electric motor. We are moving from petrol to batteries. We are moving wind, solar, potentially nuclear energy. So our entire way of moving is changing. And this is going to change every single thing. It is going to change warfare.
It is going to change medical treatment. It is going to change education. It is going to change how we eat. It is going to change every single thing. Now, the last time there was a revolution, called the computer revolution, the government of India had a clear focus. We looked at that revolution. It was the Congress government. We looked at the revolution and we decided clearly that we are going to focus on the development of software. And we rode the wave of that revolution. And today you can see the result. I remember people laughing. I remember people laughing when the computer was being talked about. You mentioned Mr. Vajpayee. I respect Mr. Vajpayee, but Mr. Vajpayee gave a speech saying that computers are of no consequence to India. So, what is important when there is a revolution? What is important is that you understand what are the drivers of that revolution and where exactly do you need to focus, where exactly do you need to sit in that revolution. I said that this revolution is going to change everything. And I want the youngsters in this country to think about it. There is a war going on in Ukraine. The war in Ukraine is actually a war between the internal combustion engine and the motor, the electric motor. The electric motor is inside the drone, the engine is inside the tank. And if you look at what is going on in Ukraine, the tanks are dying by the thousands. And small little drones with electric motors, small batteries, not much bigger than that, are destroying the entire tank artillery infrastructure of both Ukraine and Russia. So the drone is the electric motor. The drone is the battery. The drone also needs to see. So the drone is a camera. In the same way, electric cars. The electric car is the motor. The electric car is batteries. The electric car is cameras. Robots are exactly the same thing. Robots are electric motors, multiple electric motors with cameras, with batteries. And this is what the revolution is going to look like. So there are basically 4 technologies that are driving this entire change in mobility. Electric motors, batteries, optics, and then on top of that, you can apply AI. Now people, I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anywhere. So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network
so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our President's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we would do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between 2 countries, and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is not an arbitrary. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign minister visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. To apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. So we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. Number one. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters, and guide them on what a future, on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Now, we talk about defense. And today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it. And the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory.
ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपने मन गढ़ंत कहानियां बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता, जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को सदन के पटल पे रखना। आप अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, हम लोग शांति से सुनेंगे, ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इश्यू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर के वक्त बोलते थे, सीमा का बात ऑफिसर बदल से अलग बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by. Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So that would be the first part of a president's address. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you will take on the Chinese. That's the first part. The second part would be about participation. We have done a caste census in Telangana. And what we have found is shocking. Almost 90%
of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो. मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी. हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिला रहे. तो at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis in the wealth of this country. If we look at the largest corporates in this country, they're all owned. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by tribals. If we look at the biggest media companies that support the Prime Minister, every day we see the Prime Minister's pleasant face, smiling face on these media. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by Adivasis. This is a fact. So central to any new development paradigm is the architecture of a new paradigm. And that architecture of the new paradigm can only be built once the caste census is placed on the table. Because once the caste census is placed on the table, we will know exactly how much of this country's wealth, how much of this country's power, how many of this country's institutions are owned by 90% of this country. There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है. जाति जनगणना, प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता क्या? आर्किटेक्चर, अन्य हो गए participation, revolution in the country that we're going to bring. ये अंधेरा हो गया है. पार्लियामेंट में है. ये कुछ दिखता नहीं है. सोनिया गांधी, प्रियंका, ये इधर अपोजिशन को कुछ दिखाई नहीं देता है. ओबीसी बात करते हैं. The idea is, दिखाई नहीं देता क्या? Speaker sir, so the idea is, on one side, allow India and the Indian youngsters to participate in the coming mobility revolution. Allow them to participate in building robots, in building drones, in building electronic items, in building EVs. And on the other side, running parallel मैंने उनको ही मना किया. country, Speaker sir. ऐसा नहीं है. आप भी बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं. Okay, Speaker sir. So parallel ideas. One idea, participate
in the mobility revolution. Whether you're thinking of economy, weapons, production, healthcare, India should participate in this revolution. India should become the master of the electric motor, master of the battery, master of optics, and master of AI applied on top of that production system. Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country, and on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels, and wind. So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan leader would give you. The final, of course, we go back to the Constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों के आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं है उनकी चर्चा न करें। बताता हूं सर, मोहन भागवत आप नियम प्रक्रियाओं की पालन करें। आपसे अपेक्षा। सर, मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत का Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker sir, this constitution is supported by this constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this House some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha,
The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है the most interesting part, तर्क पे बात करो मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद. सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर. एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर. सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं. अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है. नहीं सर, नहीं. स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है. स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर. स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, we are asking this question. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right?
Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. Speaker sir, that is broadly. So the third element of our President's address would be a determined defense of India's institutions, of our democratic system, and a re-look at our entire democratic framework, and the looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India. So those would be the type of things that we would say in a presidential address. I'd like to finally say one thing. In the last, थोड़ा बढ़ा देता हूं, अब मैं थोड़ा और खींचूंगा, अब और खींचूंगा. So in the last, there is a background, a philosophical background to what I am saying. Essentially what I am saying to the youngsters of India and to this house is that instead of focusing on multiple things, instead of telling us a laundry list, give us a strategy, give us a vision, make it clear, right? Now, there is a philosophical basis to this. There is even a deep philosophical basis to this. I showed you the picture of Shivji, which you didn't allow me to show. I showed that picture for a reason. What does that picture tell us? If you look at that picture carefully, it tells us focus carefully. Do not get distracted. Do not look here and there. Do the job at hand. So there is a philosophical basis to the speech I have given. I have not told the House and the country that we will do this and this. This is the philosophy of Shivji. Say what you have to say, but be clear that you're going to do that one thing and don't do 56, 70 different things. So there is a link between our philosophical tradition, our religious tradition, and what I'm saying. And that is what India needs to do. India needs to connect the past, the values of the past. You talk about Sardar Patelji, but you destroy Sardar Patelji's values every day. You talk about Ambedkarji, you destroy his values every day. You talk about Nehruji, no, you don't talk about Nehruji. Right? You bow in front of Buddha. You destroy what he says. So the point is, you have to be truthful to what you are. Right? And it is important that when you are giving a way forward to the nation, there is clarity. There is clarity of purpose. There is no hatred. There is no violence. There is no anger. Because these things are destroying our country. So my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, very kind, and I thank the Prime Minister for coming and listening to it. माननीय श्री नरेश चंद पटेल, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, जाने वाले कोई नहीं रोक पाएगा। आप तो अपना भाषण दें। महोदय,
सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मानवर, इस सदन में बोलते हुए सबसे पहले मैं महाकुंभ में हुई दुखद घटना को स्मरण करना चाहता हूं। उन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मानवर, जिन्होंने अपने जीवन की आस्था और भक्ति के साथ पवित्र स्नान करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासनिक कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते वो काल के गाल में समा गए। मानवर, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का ये एक जीता जागता उदाहरण था। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। परंतु जिस प्रकार की अव्यवस्था इस बार रही, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलहीनता और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करती है। मानवर, क्या यह सरकार को पता नहीं था कि इतने विशाल आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? क्या योजनाएं केवल कागज में बनती हैं, जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? मानवर, इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुंभ में मरने वालों की सूची जारी नहीं की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पहले दिन कहा था कि महाकुंभ पर चर्चा हो। ये दुनिया का बड़ा मेला, इस मेले में इतनी बड़ी अव्यवस्था, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके का जनता के साथ मजाक हुआ, ये घोर निंदनीय है। मानवर, इस सरकार में असफलताओं की बहुत लंबी सूची है। मानवर, शिक्षा जो किसी राष्ट्र की बुनियाद होती है, आज भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुकी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में मानवर मजाक बनकर रह गई है। मानवर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन बड़े बड़े वादों के साथ होते कहा गया। मानवर, ये संस्था निष्पक्षता, पारदर्शिता की नई मिसाल कायम करेगी, लेकिन आज ये हालत है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही सोशल मीडिया में पेपर लीक हो जाते हैं। क्या यही सरकार की पारदर्शिता है? क्या यही डिजिटल इंडिया का सच है? नीट की परीक्षा, जो लाखों छात्रों के मेडिकल के करियर को भविष्य तय करती है, उसके बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। मानवल, रेलवे भर्ती, एसएससी की परीक्षा, यूजीसी, नेट, कोई भी परीक्षा इस सरकार की अक्षमता से बच नहीं पाई है। एनटीए को स्थापित करने पर सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो मानवर खोखले निकले। मानवर, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की फसलों के मूल्य के एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। लगातार देश के किसान, करोड़ों किसान इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम